Hello, everyone. Welcome back to another episode by Grey Beyond Narratives. Today, we bring you a discussion about elections. I'm going to give you an overview of it. Uh, Today is Pakistan's elections 2024. And even though everyone tried a lot to stop PTI is leading in the results. Um Cell phones has been blocked all over Pakistan, and everybody's really angry over that. And a lot of people think that this is a reminiscent of the elections in 2018 when the result transmission system collapsed, and then Imran Khan was declared the winner. And there has been like 51. There has been reports where 51 terrorist um, activity happened, and around 12 people died and 39 has been injured. And the vote turnout have been big, and there has been complaint from different polling stations, like in Punjab. The PTI candidates or agents were not allowed inside the polling station. The ECP employees who were controlling the whole thing, in many places they were late. The polling started very late. They were, honestly speaking, what I think is they were trying to discourage people from voting because a lot of people left. There has been even a case where they kept it on the first floor where old people could not exactly go there. So a lot of people didn't vote. They came back just like that. And but Imran Khan is still leading the result. And I think that's about it for the introduction. And I'm going to move to Furkan Bhai to take over. And Yeah. Thank you. Furkan Bhai? Thank you, Maham. I think one thing we also need to realize currently जो results आ रहे हैं they are not more than 3, 5, 6, 7, 8% different जो National Assembly की seats हैं provincial की इससे भी कम percentage of polling stations ने अभी तक results किए हैं but it's like the independents are leading currently but like anything can happen अभी एक शख्स का या वोट डालना हमेशा रहता है और वो रात को डालते हैं तो let's see what happens. I'll directly go to first Dr. Goof if you can give a introduction about yourself कौन है and then I'll go to Dr. Mohammed Salman. जी Dr. Goof. Thank you, Dr. Furkan. I basically have a PhD in economics और मैं academia में involved हूँ. इस तरह का education वगैरह में मेरा career है. So I'm currently based in the UK. Okay, thank you. Dr. Salman. Yeah, so myself, Salman, I have done my PhD in political science. So I have a background in international relations and political science. So currently I'm based in Karachi, teaching at different universities and doing my independent research. That's about it. Thank you very much. Thank you for joining us. Dr. Salman, I'll start with you. आप आज वोट कास्ट करके भी आए हैं. You are in कराची. तो अपने impressions बताएं क्या था और क्या है. Like go ahead. कराची में जो मैंने दो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक्सपीरियंस किया. तो जो मेरी वाइफ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 236 है जहां से आलमगीर खान फिक्स्ड फेम जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं. तो हम लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग चले गए थे. मतलब मेरी वाइफ का हमने वोट कास्ट किया 9 बजे और उसमें मतलब बड़ा स्मूथली वो हो गया था. और याद रहे कि वो थोड़ा सा कच्ची आबादी का एक पोलिंग स्टेशन है. मतलब रिलेटिवली कच्ची आबादी है, अनप्लान्ड नेबरहुड है, वहां पर उनका था. और जो प्लान्ड नेबरहुड है इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, खासकर जो मिलेनियम मॉल के पास वाला एरिया है स्करी 4 का, वहां पर पूरे दिन में पोलिंग हुई ही नहीं. पूरे दिन कोई पोलिंग नहीं हुई और मैसिव क्राउड था वहां पर, मैसिव क्राउड. क्योंकि मिलेनियम मॉल का अगर आपको याद हो, ये वो स्पॉट है कि जहां पर जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया था वीओएनसी के जरिए, तो ये वो प्लेसेस हैं, वो स्पॉट्स हैं कि जहां पर ऑर्गेनिकली लोग जो हैं वो दे केम आउट एंड दे रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट.
तो वो वाला जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर वोट पूरे दिन कास्ट नहीं हुआ। सो आई एम नॉट श्योर कि इस, और अभी भी उसके बावजूद आलमगीर जो है लीड कर रहा था फ्यू मिनट्स अगो। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर यहाँ पर किसी एक पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट ही नहीं हुआ। नाजिमाबाद में जब मैं गया, जहाँ मैं मेरा वोट है कास्ट 249 के अंदर, तो वहां पर भी स्मूथ था। और हालांकि जो मेरा पोलिंग स्टेशन था वो चेंज हो गया था, मतलब पिछले 3 इलेक्शन से जहां मैं वोट कास्ट कर रहा था वहां मेरा वोट नहीं था, लेकिन 8300 पे मुझे प्रॉपरली मैसेज मिल गया था, वहीं पर मेरा था। लेकिन आई मेट कपल ऑफ पीपल हु वर स्टिल स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ फाउंडिंग देयर वोट बुक, कि उनका जो बुक नंबर था वो नहीं मौजूद था मल्टीपल पोलिंग स्टेशन पे विसिनिटी के अंदर। फिर आके हमने देखा न्यूज़ वगैरह को, तो उसमें कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिसमें रिगिंग हो रही है, और कुछ एमकेएम के जो ओल्ड टैक्टिक्स हैं जो कि वो 90s में करते थे, और इवन अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मुशर्रफ, तो वो टैक्टिक्स दोबारा से देखने में आए कुछ जगहों पर। तो at certain constituencies they were at loggerheads with JI, and in certain constituencies they were at loggerheads with PPP। तो कादिर मंदोखैल के जो वो है, मैं शायद बल्दिया का इलाका है जहाँ पे मुस्तफा कमाल खड़ा हुए हैं, जहाँ से लास्ट टाइम शहबाज शरीफ हारे थे फर्स्ट वार्ड से। तो वहां पर कादिर मंदोखैल और मुस्तफा कमाल के वर्कर्स के दरमियान क्लैशेस भी हुए हैं। उसमें पोलिंग स्टेशन कैप्चर करने की भी रिपोर्ट्स हैं। फिर जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको स्टफ करने की रिपोर्ट्स भी हैं, और मुख्तलिफ इस तरह की काफ़ी हमने पूरे दिन में देखा है कि कराची के अंदर ख़ास तौर पे। और अभी कराची आई थिंक टेक्नोलॉजिकली मेरे ख्याल में मोस्ट इक्विप सिटी होगा, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, लेकिन अभी भी कराची के कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आए। मतलब आपको शायद रिमोट एरियाज के साउथ पंजाब के भी आपको आ जाएंगे, इंटीरियर सिंध के आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कराची के जो रिजल्ट्स अपडेट नहीं होंगे। और ये हमेशा का है, जब कराची के रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ पीटीआई हो रहे थे तब भी ये था कि 2-2 दिन जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट जो है आपको 3-4 दिन बाद मिलेंगे, मुमकिन है कि दे विल बी डिलेड फॉर अ वीक। तो ये है, डिस्पाइट दैट दे आर पुटिंग अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट। मतलब बरकत का मैं भी देख रहा था उनका ट्वीट, वो कह रहे थे कि आई एम स्टन्ड, दिस फाइट बैक इज क्वाइट स्टनिंग। मतलब they have been completely written off by all the so-called pundits, but still despite that they have, और मतलब केपी में तो था मैं, क्योंकि केपी के अंदर पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज करते हैं पार्टी आइडेंटिफिकेशन। तो पार्टी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत मैसिवली स्ट्रॉन्ग है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। लेकिन पंजाब में मुझे नहीं लगता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन वी हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। सो या, दैट्स व्हाट माय impressions are. Thank you, Dr. Salman. I'll get back with a question, but अभी like opening statements ले लेते हैं. Dr. Goof, go ahead with your opening statement. What are your thoughts जो 2-3 दिन आप follow कर रहे हैं इस election को? तो इसमें कि ऑब्वियसली आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो मेरे लिए द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ट्विटर या कोई न्यूज़ फीड कुछ आ गई तो उधर से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो उसमें देखने को तो जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी दैट वाज द टर्न आउट, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी मीडिया चैनल्स ने यही रिपोर्ट किया है कि इट वाज हिस्टोरिकल टर्न आउट जो कि हुआ। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि दे reduced the pace of the entire polling process. It was not very efficient, और काफ़ी लोग reportedly were unable to cast their votes. And what made that worse was कि ECP decided not to extend the time. खास तौर पे जिस तरह डॉक्टर सलमान ने भी अभी मेंशन किया कि कुछ जगहों पे तो बहुत डिलेड स्टार्ट हुई है पोलिंग, 11 बजे 12 बजे। एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स जो कि डाउट कास्ट करती हैं सारे इलेक्शन पे। आई मीन वी ऑल नो अबाउट द प्री पोल रिगिंग, सारा जो चल रहा था सिचुएशन, बट आज जो हुआ है उसमें भी इलेक्शन डे पे जो वीडियो रिकॉर्ड के साथ आ रही हैं रिपोर्ट्स, दैट इज क्वाइट कंसर्निंग। सो लेट्स सी कि अभी आगे क्या चलता है। Independents are leading right now, but
उसमें भी अगले next few days those are going to be telling के what exactly ends up happening after these elections. Thank you very much. Umair has joined us. Umair, if you can just briefly introduce yourself. I know आप थोड़ा आज polling stations पे घूम फिर के आए हैं, थके हुए होंगे, but brief introduction आप दे दें, and then your opening statement आपका क्या thought है of today and even the previous few days or weeks जो election तक आए हैं हम. ओके, थैंक यू फुरकान। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं जी इस्लामाबाद में हूँ करंटली, और आई थिंक इट हैज़ बीन अराउंड 12 20 16 आवर्स के कोई मोबाइल सेलुलर सर्विस इज ऑफ, देयर इज़ नो इंटरनेट मोबाइल डाटा, और वाईफाई पे या हम लोगों ने जो है उसी से आज सारा दिन किया है। तो Um, I've been working in media for about 10 years. अभी currently I'm a freelance journalist, और मेरा मेजर जो है वो पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नेंस, कम्युनिकेशंस, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री है। तो आज इट वाज अ गुड डे। आई थिंक the whole ploy of disconnecting people, communication channels से actually I think worked well for PTI, और आई थिंक उसने डेंट किया होगा पीपल्स पार्टी और एन को ज्यादा, बिकॉज ऑन द पोलिंग डे यू नीड एक्चुअली cellular service for access to logistics and all, जो आपकी ऑपरेशनल साइड है वो। तो जो ट्रेडिशनल वोट है यहाँ पे, एज वी ऑल नो, उसमें ये होता है कि यू नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू एक्चुअली रीच टू पोलिंग स्टेशंस एज वेल। और जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं पीटीआई में, ये वो यूजुअली दे नीड दिस। सो हमें तो ये था कि मतलब आई थिंक वोटर टर्नआउट पीटीआई के ये, क्योंकि इट हैज प्लेड थोड़ा सा सपोर्ट जो है पीटीआई की वो ज़रा प्रीटी, जो हुआ है 2 सालों में सभी को पता है, तो वो मोटिवेटेड थे। एंड दे, मैंने देखा है कि टर्न आउट इस्लामाबाद में तो 70%, आई कैन नॉट गिव अ श्योर नंबर, बट आई थिंक मेरी लोकेलिटी में तो इट वाज अराउंड 65% फॉर श्योर। और द गुड न्यूज़ इस पे ख़त्म करूंगा कि इस्लामाबाद की तीनों सीट्स जो हैं वो पीटीआई ने जीत ली हैं, 47 एनए, 47, 46 और 48। Oh wow! And this is like the final official result or yeah, कुछ polling stations का है? नो जी, ये ऑफिशियल नहीं है, बट दिस इज अबाउट 50% ऑफ। I think internet is still bad in Islamabad. We can't hear you, Umair. I'll go back to Dr. Salman and ask के आपने identify तो की है, like you saw कि आज issues थे, but are they any different from the previous elections जो कि आपने 18 का भी चले 18 में, like I know you weren't in Pakistan, but like उससे पहले भी आपने देखे होंगे, तब भी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, तो कोई डिफरेंस फील हुआ कि मैस लेवल पे चेंजेस हैं? क्योंकि ये तो लाइक इट हैज बीन अ नॉर्म इन पाकिस्तान के इस तरह के इश्यूज रहते हैं, तो कोई ज्यादा स्केल पे डिफरेंस आपको नजर आया? कराची में तो कोई नई चीज नहीं है। कराची में तो हम जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है, हमेशा से मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि रिजल्ट्स आर ऑलवेज मैनेज्ड। 2013 में व्हेन देयर वाज अ स्ट्रांग वेव ऑफ पीटीआई, क्योंकि 2013 से थोड़ा पहले अगर हम जाएं, बल्कि इलेक्शन से पहले ही हम जाएं, तो कराची में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रेज एनी ओपिनियन अगेंस्ट अल्ताफ हुसैन एट दैट टाइम। 2013 में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें जो पोस्ट इलेक्शन प्रोटेस्ट हुए थे एट हसन स्क्वायर एंड शारा फैसल एंड इवन एट तीन तलवार, तो वहां पर मैं शारा फैसल और हसन स्क्वायर पे मैंने गया था वहां पर। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में लोगों को, अल्ताफ हुसैन को ओपनली गालियां देते हुए देखा था कराची के अंदर। तो दैट वाज अ शिफ्ट, लाइक मेजर शिफ्ट फॉर मी, और इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी। तो उसके बाद एमकेएम एज अ पार्टी जो है वो ऑफ कोर्स उनकी वो स्ट्रेंथ भी नहीं रही है जो 2014 में उनके खिलाफ ऑपरेशंस वगैरह हुए। तो अभी जो वो इलेक्शंस वगैरह मैनेज कर रहे हैं एमकेएम और इवन पीपल्स पार्टी भी, ये सारा का सारा स्टेट पैट्रनेज के अंदर में हो रहा है।
और स्टेट हमेशा कराची के जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स हैं उनको मैनेज करती है। लास्ट टाइम कुछ पीटीआई के लोग थे, उनके फेवर में मैनेज किया उन्होंने। जैसे फैसल फैसल बाडा का जो इलेक्शन था, इट वाज़ क्वाइट नोन कि वो उसके फेवर में मैनेज किया गया था, क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ से जीत रहा था। क्योंकि बल्दिया में मैं जब गया था, बल्दिया मैंने विज़िट किया था, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर पीएमएल का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है। तो ये स्टेट जो है कराची में करती है। अ, और मेरे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। Thank you, Salman bhai. I'll go to Sid. What are your thoughts, initial statements, and uh, जो भी आप I don't know whether you went and आपने वोट किया आज. Yes, if I am talking about the current situation of Pakistan, it would be unrightful for me if I do not cast my vote. ये मेरी ज़िंदगी का पहला वोट था, पहला वाला जो से वोट था वो मैं नहीं था दे सका because I did not believe in the system. I still don't, but since I was planning on talking about it, I said, चलो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करके जाते हैं ना, एटलीस्ट आई विल हैव the right to speak about it. हम इस चीज से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि the people who did not believe in the system, just like me, I do not believe in the system, and thought that we should avoid our vote because it doesn't matter. They forgo the right to complain about the system later on. आपका वोट काउंट नहीं भी होता तो आप कम से कम जोन से लोग रिग कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात तो खड़ी करें, एटलीस्ट प्ले योर पार्ट। और जहाँ तक क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से इलेक्शन के अंदर क्या आसानी थी क्या नहीं थी आसानी, द सिस्टम मेड इट एज हार्ड एज पॉसिबल इन रिगार्ड्स टू द कास्टिंग ऑफ द वोटिंग। एक बहुत ही अजीबो गरीब सी सूरत हाल जो देखने में आई है। एक ही घर के लोगों के वोट्स अलहदा पोलिंग स्टेशन में, मेरे घर के अंदर 5 वोट थे, हमारे 3 अलहदा पोलिंग स्टेशन थे। Me and my father had one polling station, one of my sisters had another polling station, my mother and another one of my sister had another polling station. They made it as hard as possible for the public to cast votes. और जो लोग वोट दे के आए हैं उनको पता होगा कि एक घराना सिस्टम होता है वोटिंग के अंदर, कि एक हाउस होल्ड का जो नंबर है वो सबको अलॉट होता है। इट मेक्स अ वेरी क्लियर सेंस कि एक हाउस होल्ड एक ही पोलिंग स्टेशन में होना चाहिए। दे डिलिबरेटली मेड डिफरेंट polling stations for the same household. Same happened at my uncle's house. Same happened at another one of my uncle's house. Same happened at my aunt's house. मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने 2 तायाओं को और एक फुफी को जो उनसे कॉल करके पूछा कि इस तरह की सिचुएशन है, उनका एग्जैक्टली ऐसा हुआ है हमारे साथ। हम पूरे शहर में सुबह 7 बजे से लूर लूर फिर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। The system tried its best to make the people not vote. वो ये चीज भूल गए कि we are pretty much done with the system. We are voting just to spite them. Even though we don't believe in the system, we are voting to spite them. और जिस तरह आप लोग इस वक्त करंट सिचुएशन देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वोटर्स जीत रहे हैं, और जो सी सिचुएशन हमें ऑलरेडी पता क्योंकि बल्ले का निशान उन्होंने छीन लिया था, इट इज़ वेरी लाइकली कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं दे आर अलोंग विद पीटीआई। लेकिन इससे एक और बहुत बड़ा खतरा मेरे जहन में आता है दैट once all of this is done and dusted in about 2 days, I hope that it is done and dusted in about 2 days, जो इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी वो इलेक्शन के बाद भी करना शुरू कर देगी। दे आर आइदर गोइंग टू बाय देम एंड दोज हु डू नॉट सेल देमसेल्व्स they'll make them an offer they cannot refuse, because some people are bought by money and some people are bought by family, and we have seen people uh, losing for a little bit of a time, or should I say being their family members being borrowed by the system.
which I think is a persuasive tactic. And let's hope that they are brave enough to fight it, those who win. Yeah, thank you, said Maham. I was just reading Twitter right now. NA51 में almost अभी थोड़ी देर में rigging शुरू होने वाली है. Someone have tweeted that her friend is like working there or something, and they're going to start rigging right now. I think that's Murray and Rawalpindi, something like that, and they're about to. I don't know if I should be saying this on air, but Sindh and KP results. Okay, nobody cares, but the big dogs, they are taking the results of Punjab in their own hands, and they are going to change their results. So yeah, Hmm. I don't know why do we even bother. I'm sorry, but I don't understand why do we even bother. करना है जिसको बिठाना है बिठाओ यार, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमसे क्यों, मतलब why is this pretentious game, come vote and we will let you win. I mean, give me a break. But okay, continue please. But I think things uh, are unexpected right now कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि like ठीक है 3 4 5% पे independents are in the lead. What will happen tomorrow? It's something. और उसके बाद like क्या होगा, whether independents, and लेकिन then फुरकान I भाई would go. एक दूसरा में I want to point something out to you. जब ये लोग पीटीआई के रिजल्ट दिखाते हैं, they what they're judging it by independent candidates, right? जो independent खड़े हैं उन candidates को जज कर रहे हैं कि इन लोगों की कुल जो है 125 seats पे lead कर रहे हैं. But how do we know that all of these people are going to join PTI, or are all of them are going to at the end of the day go and say कि okay we'll be part of PTI? I mean, कि वो ये भी हो सकता है कि वो कैंडिडेट किसी को डरा दें, किसी को प्रेशर कर दें, and they join PML or something. You never know. अच्छा So it's all इसमें very हम्म इसमें like It doesn't, ये तो it doesn't ECB matter की actually. रूलिंग It आ doesn't चुकी matter है. actually. रूलिंग आ चुकी है कि like they can't join PTI. ECB की रूलिंग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है. बट मैंने एक क्वेश्चन सलमान भाई जी जी हाँ. Because at this मैं point, एक it doesn't क्वेश्चन. matter actually whether they're going to stay with PTI or they will be forced or bribed to join other parties. The point of this entire exercise was to make a statement, and a statement has been made in a very massive way कि भाई आप जो चाहे मर्जी कर लें, अगर एक स्ट्रॉन्ग वेव बन जाती है पॉलिटिकल, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मैसिव वे में पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो कन्वे हुए हैं उसके अंदर. और अभी भी अगर वो मैनेज करेंगे पंजाब के अंदर, इट विल बी वेरी टफ एक्चुअली थिंग टू डू, कि इतना बड़ा मार्जिन जो है वो कवर करना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए. तो वो करेंगे भी तो 30-40 का मैक्सिमम कर सकेंगे. तो एज अ रिजल्ट जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो एक कोalition गवर्नमेंट होगी, और कोalition गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है स्टेट की, वो फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस तरह के रिफॉर्म्स करने की सलाहियत ही नहीं रखती है. कि कोalition गवर्नमेंट की पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे ये नेचर होती है कि वो पेट्रोनेज में चलती है, और वो एक दूसरे को, जो कोalition पार्टनर्स हैं, उनको प्लीज करने में, उनको अपीज करने में ही उनका पूरा टेन्योर जो है सर्व होगा. तो इफ दे आर गोइंग टू फॉर्म दैट सॉर्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट, then it's not going to sustain for long. I don't think that it will go beyond 1 or 1.5 years. So there will be another election. So either election or maybe complete so democratic backslide. Salman bhai, I would like to point this out. Yeah, so Salman bhai, first of all, I want to ask you this question. Do you think these people care about what happens to Pakistan if they make a coalition government? They don't care. वरना पाकिस्तान की ये हालात होते जो If they हैं don't, अभी, they really don't if they care. don't care And for now, secondly, if they don't care, secondly, they don't care about, yeah, they also don't care about our sentiment as well. I've noticed this मतलब ये जो सारा जो election तक बात वो situation आ रही थी, I was following it, and the tactics that were being used to stop people from voting PTI, like I said, I mean, offices first floor पे कर दिए, late आए हैं ताकि these are different tactics they were using ताकि लोग
वोट ना करें, टर्न आउट कम आए, ठीक है. I think they already know what the situation is. They already know that nobody really likes us. So what we'll have to do is we'll have to make sure कि PTI को sideline कर दें किसी तरीके से, stop them from voting, यानी उनको उनका वो बैट छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, and still there is so much. I think they already know that. I'm sorry, but they don't care. They know they don't care. They don't care for now, but this is not sustainable. So they will have to care at some point. और इस तरह की illegitimacy जो है they cannot afford. They will have to regain their legitimacy as an institution. तो वो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उनको. इस अगर अगर प्योरली हम रियल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको अंडरस्टैंड करें ना, तो ये जो टैक्टिक्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है. और इफ दे वांट टू रिटेन देयर पावर एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये सस्टेनेबल नहीं है. तो वो लेजिटिमेसी वैसे ही ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, तो फर्दर डी लेजिटिमाइज होंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज थिंग्स लाइक दैट. तो रहेगा अभी मेरे ख्याल में किसी जोन में है, किसी एरोगेंस में है, किसी फॉल्स नोशंस के अंडर में है, तो वो समझ रहे हैं कि वो शायद कर लेंगे इसको मैनेज और सस्टेन भी कर लेंगे. लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मतलब जो भी हमें हिस्ट्री बताती है, मतलब ग्लोबल हिस्ट्री नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी जो बताती है हमें, तो उसमें ये इस तरह से सस्टेन नहीं हो सकता. मतलब अंडर कंप्लीट मिलिट्री रूल भी चीजें इस तरह से सस्टेन नहीं होती हैं. मतलब आपने ज़िया-उल-हक का जब देखा हमने, जो सबसे फास्ट इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो 1985 के इलेक्शंस थे, नॉन पार्टी बेसिस पे. तो उसमें भी जो उन्होंने अपना एक डमी प्राइम मिनिस्टर बनाया था जुनेजो का, जुनेजो ने भी चैलेंज करना शुरू कर दिया था ज़िया-उल-हक को, और फिर उनको रिमूव करना पड़ा इवेंचुअली जुनेजो को. तो इवन मुशर्रफ के दौर में भी हम देखते हैं कि वो बिल्कुल पावर में थे और मुशर्रफ के अगेंस्ट उस तरह की पब्लिक वो भी नहीं थी, सेंटिमेंट्स भी नहीं थे. स्टिल 2002 का इलेक्शंस वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए. तो उसमें भी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेजोरिटी पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट, और सीट्स जो है वो एमएमए ने भी कुछ जीत ली थी. तो उसके बाद भी वो 4-5 साल के अंदर हम देखते हैं कि वो नहीं कर पाए उस वेव को. तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा लंबा सस्टेन कर पाएंगे. अभी किसी जोन में है, और मेरे नहीं ख्याल कि एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ये बैक कर पाएंगे कुछ इंडिविजुअल्स के डिसीजंस को फॉर दैट लॉन्ग. इसके अलावा सलमान हमें भाई, ये आई भी एग्री विद यू, लेकिन अगर पीटीआई, अगर एक सेकंड, अगर इसके अलावा अगर पीटीआई भी आती है, तो आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट इमरान खान नीड्स टू चेंज, व्हिच इज रिवेंज पॉलिटिक्स. गोइंग आफ्टर फलाना चोर है, फलाना चोर है, या फलान नहीं है किया, ऑफ फलान कोर्स. नहीं है हाँ किया, वी हाँ डोंट केयर, दे टुक द मनी, लेट देम गो. बिल्कुल. Just हाँ work on, I mean, Pakistan as a situation, we're almost becoming some Somalia बनने वाले हम लोग. So I think Imran Khan has to do a little इससे work on his, like last time he had no financial बिल्कुल. plan. हमें ये वो रीचेक अफोर्ड नहीं कर करना सकते पड़ेगा उनको, मेरे उसकी ख्याल पॉलिटिक्स से. देख सकते. सोमालिया हमें ये रीचेक करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से सोमालिया इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर है प्रोबेबली, लेकिन हमें इस Sorry, I चीज को think I भी confused it with Sudan. I'm sorry, I was wanted to make a point about Sudan. yes, yeah, I think we are better than Sudan for now at least. लेकिन हमें एक और चीज भी तो जहन में रखनी पड़ेगी ना कि जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि इट इज नॉट सस्टेनेबल, स्पेशली आफ्टर व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट हैज सीन. हमारे यहाँ पे ब्लडी सिविलियंस ने फौजियों के घर पे धावे बोल दिए थे. हम स्ट्रॉबेरियां खा रहे थे. हम लोग 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ है हम लोग Just भूल so you गए. know, Sid, I don't believe कि जो हमारे जो फौजी बॉयज हैं उनको पहले से पता नहीं था कि they were gonna do that. They let it happen so that they can use it against PTI. So you know. Bada boom, whatever you want to. The thing is, the public sentiment is that much aggressive. We are that much. पाकिस्तान वो मुल्क था कि हम जब हमारी फौज के बारे में कोई क्रिटिसाइज करता होता था तो हम लोग कहते थे ताड़ी है तो
हम बताते खुद जितना मर्जी उनके बारे Do में you करते हैं, remember जैसे the कोई बाहर time का बंदा. how I used to aggressively support? Do you remember the time when I used to aggressively support Pak Army? Like, anyone would say anything and I'd be like, no! And now Yeah, times that have was changed. not very long ago. That was about, I guess, 2 years or a year and a half ago. I was the same 2.5 years ago. And this has nothing to do with that. This actually does not have anything to do with PTI. Interestingly said, सलमान भाई एंड मर्जिया इनकी जो वाइफ है, ये मेरे से एक दिन रात को लड़ पड़े थे. मैं कुछ बोल रहा था अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट and we had a 1.5 hour discussion, heated debate. Like it was 19, I guess, 19 or 20, I guess. हाँ 2019. Yeah. So, this change has been there. आपने इर्द-गिर्द के लोगों में देखा होगा. And back then, the point of contention जो हमारा था, we were discussing in 2019. I was like that Khan is getting too close to the establishment, relying too much on the establishment, which would be like not good for him. And ज़्यादातर जो उस वक्त PTA वाले थे, they were like, we are on the same page, बल्ले बल्ले, all good, nothing is going to happen. But like, अगर हिस्ट्री देखें, a lot of people have been on the same page और वो फिर उठा के उन्हें नीचे फेंका गया. तो it's a bit tricky to like shake hands with the devil ना. तो वो जरा होता है. बाकी I would go to Dr. Goof on certain things regarding economics. अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, whether I know there is a narrative behind PTI, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ी है. जो नैरेटिव पीएमएलएन का था 3 साल पहले, वोट को इज्जत दो, अब इनका नैरेटिव है. तो दे हैव अ नैरेटिव, आएंगे तो सुपर हीरो बन जाएंगे, जरा बल्ले बल्ले होगी. बट कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो मेन 4-5, अगर इफ यू कैन आउटलाइन द इकोनॉमिक चैलेंजेस और उसको किस तरह टैकल किया जाएगा, यू माइट हैव सम clue about it if you can like talk a bit about the economics, Dr. Goof. तो इसमें तो आई थिंक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दे आर क्वाइट लैकिंग असाइड फ्रॉम मे बी पीपल्स पार्टी कि उन्होंने जो अपना मंशूर पेश किया है. आई वॉच दैट बिलावल भुट्टो का आया हुआ था वीलॉग. आई फॉरगेट द नेम, किसके साथ था. शहजाद गयास. आई थिंक हाँ. उसमें आई रियली लाइक द पार्ट जिसमें बिलावल भुट्टो टेल्स हिम पकड़ा गया, नहीं पड़ा मेरा मंशूर. दैट वाज रियली नाइस. लेकिन एटलीस्ट द थिंग इज कि दे आर सेइंग समथिंग अबाउट कि हम करेंगे कैसे. पाकिस्तान ये पीटीआई की बात करें, नून लीग की करें, दूध की नहरें बहा देंगे, ये कर देंगे, मोटरवे बनाई थी, एक और मोटरवे बना देंगे. That's not how you actually can talk about a country. आप इसे इस तरह देख लें कि घर की बजटिंग कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में मैंने क्या करना है. सूखा काम नहीं है ये. आप 25 करोड़ घरों की बात कर रहे हो, तो इट इज मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही ज्यादा मुश्किल काम. तो इसी तरह बस कह देना कि मोटरवे डाल देंगे, ये कर देंगे, आई थिंक के प्लानिंग नहीं है किसी भी लेवल पे. आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख लें, साइज वाइज इट इज वे टू मैसिव फॉर. अभी तो ठीक है, वैसी हालात खराब हैं, लेकिन उससे पहले भी कि यू डोंट हैव दैट मच ट्रैफिक, ओवर प्लान किया हुआ. तो एटलीस्ट पीपीपी इज सेइंग समथिंग अबाउट कि हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू अचीव द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू. उन्होंने भी बड़े टॉल क्लेम्स किए हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे हम, रोटी कपड़ा मकान, तो उनका वैसी स्लोगन है. बट दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट कि हम अचीव करेंगे किस तरह. सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान का यही है कि एक्सपेंसेस आर वे टू मच गवर्नमेंट को रन करने के. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो आपका इरिगेशन के टैक्सेस लगाते हैं आबियाना, उसकी असेसमेंट में ज़्यादा खर्चा करते हैं कंपेयर टू जो उससे कलेक्शन करते हैं. तो अगर वो असेसमेंट ना करें तो दे विल बी सेविंग मोर मनी फॉर द गवर्नमेंट. तो थिंग्स विल हैव टू चेंज. एक तो टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इमरान खान के टाइम पे देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट.
आपकी लेबर फोर्स का 1% टैक्स दे रहा था at around I think 2019. In a couple of years, this number increased to 3%. और अब आई थिंक उससे भी ऊपर चला गया, आई थिंक अभी 5 मिलियन के आसपास है जो आपका फाइलर स्टेटस हुआ है। तो नॉन फाइलर स्टेटस दैट शुड बी एलिमिनेटेड, लेकिन मसला यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी वो इस तरफ काम करने की कोशिश करेगी, जो अपोजिशन में होगी वो जाके खड़ी हो जाएगी साथ नॉन फाइलर ट्रेडर्स वगैरह सारे उनके साथ। तो देयर हैज बीन सम गुड एफर्ट्स, जैसे आपका ये जो जीएसटी वगैरह पे इन्होंने किया है इन रेस्टोरेंट्स पंजाब में कि इफ यू परचेज ऑन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो 5% जीएसटी, अदरवाइज 16% है। तो दैट इज इंसेंटिवाइजिंग टू ब्रिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द बुक ताकि पकड़ धकड़ में आसानी हो टैक्स चोरी की। बट दैट्स द काइंड ऑफ इनोवेशन दैट वी नीड कि जिसकी तरफ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली आप आईटी या इनोवेशन साइड पे किस तरह बात कर सकते हैं जब हर दूसरे दिन तारें पाकिस्तान की खराब हो जाती हैं इंटरनेट की। क्लेम भी किया गया था पीटीए की तरफ से कि नहीं होगा इलेक्शन के दिन, बट वी सॉ व्हाट हैपेंड। तो देयर इज नो लॉन्जेविटी टू एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज। तो वो एक चीज है जो लानी पड़ेगी। एंड ये जो भी बात हो रही थी कि रिवेंज की सियासत डेफिनेटली खत्म करनी पड़ेगी। गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। किसी और ने अच्छा काम किया। अच्छा, मेरा मेरा एक सवाल, एक कमेंट भी है इस सवाल से गफरान डॉक्टर गूफ से। जी एक सवाल भी, एक कमेंट भी है। जो मेरे ख्याल में जो एक जो मेरी ऑब्वियसली इतनी रिफाइंड मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो जिसमें सबसे मैसिव जो क्राइसिस है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो आपका एनर्जी क्राइसिस है। और ये एनर्जी जो क्राइसिस है, ये समझने के जो चॉइसेस हैं वो डेविल और डीप ब्लू सी के दरमियान है। उसमें ये है कि आपका जो सर्कुलर डाटा वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और फिर इसके अलावा आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ानी ही पड़ रही हैं। और उसमें जब आप बढ़ाते हैं, नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स हैं वो मैसिव इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो, जो कि ऑलरेडी कर्टेड है, वो और कम हो जाती है। तो जॉन मेनार्ड केन्स की ज़बान में अगर हम कहें कि वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्रेस हो रही है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरह से नहीं रहेगी। तो जब वो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जब गिरेगी तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो आप कैसे उसको ब्रिज कर पाएँगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो बात कर रहा था उसमें, उसके मैनिफेस्टो में इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से कोई क्लैरिटी है। मेरे ख्याल है पीटीआई के मैनिफेस्टो में इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेक्निकलिटीज़, लेकिन आई वाज़ रीडिंग सम कमेंट्री के काफ़ी बेहतर उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। और आईपीपीज़ के साथ जो आपके डील्स हैं उनको आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की जो ये इन्होंने मैसिव ब्लेंडर्स किए पीएम की गवर्नमेंट ने, ये आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनको खासकर सीपैक के हब अंदर भी, और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल आईपीपीज़ से किए हैं, उसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, वरना ये सस्टेनेबल नहीं है। और इस सर्कुलर डेट को और एनर्जी की चीज़ों को मेरे ख्याल में एड्रेस करने के लिए आप बताओ कि क्या अभी तक किसी पार्टी की पोजीशंस हैं और किसकी पोजीशन तुम्हें ज़्यादा प्लॉजिबल लगती है? डॉक्टर सलमान, पहले तो आई थिंक आई शुड क्लैरिफाई माई सेल्फ। मैं कतन ये नहीं कह रहा था कि ना पीपीपी का मंशूर बेस्ट है। आई वाज जस्ट सेइंग कि दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू से कि यार हम ये जो करेंगे किस तरह करेंगे अचीव। पीटीआई का मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखी थी, राइट। लेकिन कुछ चीजें जो देखी थी कि आई डेंट सी अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि कहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट के जो उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट इतनी क्रिएट करेंगे, कहाँ से करेंगे। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लैकिंग। सही। Not trying to say कि one is doing better than the other in terms of the man ये मंशूर, क्योंकि at the end of the day these are still सियासी बातें। जब नहीं कर सकेंगे वो तो हमने सियासी बयान दिया था, तो अब हम अचीव नहीं कर सकते। रही बात ये आप जो कैपेसिटी वाली बात की है, उसमें तो ऑब्वियसली जो आपकी अरेंजमेंट्स इनके साथ हुई थी कि यू विल बी पेड रिगार्डलेस कि अमाउंट कितनी है आपकी पे है उस तरह आईपीपीज का, तो दैट वाज आपका काफी बड़ी गलती थी।
लेकिन अब ये कि उसे रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि कंट्रैक्चुअली तो यू आर ऑब्लिगेटेड, दैट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बिल्कुल। IPPs। तो उसमें सर्कुलर डेट पे तो आई थिंक के सारे इक्वली, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, नेक्स्ट 5-10 years आर गोइंग टू बी टफ। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी वे सही। आउट आपको, हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स, अभी ऑफ कोर्स। सुहेल वड़ाइच का एक कॉलम आया हुआ था जिसपे ही वाज सेइंग के बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या जो बड़े इदारे हैं, उनका प्लान ये था कि 10 years की हम कंटिन्यूटी लाना चाहते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में कंटिन्यूटी आई, अदारों के साथ मिल के उन्होंने स्ट्रेंथन किया, तो इस तरह करने का प्लान था। फिर आगे उसने अपना तज्जिया दिया था, एंड आई थिंक दैट दैट इज़ वेरी सूटेबल, इस हिसाब से कि अगर इन्हें लगता है कि 10 साल तक चल जाएगी, नवाज शरीफ एंड द एस्टेब्लिशमेंट दे डू नॉट एग्री ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट। नवाज शरीफ इंडिया के साथ मामला को कोर्स। रिजॉल्व करना चाहता है, जनरली दैट्स द वे नवाज शरीफ वर्क्स। तो उसमें डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, फ्रैक्चर्स आएंगे, एंड 10 year वाला प्लान इट हैज नेवर वर्क। पहले भी कि इमरान खान के टाइम पे भी कह रहे थे कि 10 year प्लान है, 10 year प्लान, इट्स नॉट गोना वर्क। तो उस पे आई से वही है कि इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट वन, ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि एक तो चीज हुई है इस सारी एपिसोड से, ये जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, कि हर इंस्टीट्यूशन के आपको फ्लॉज नजर आ गए, कि एवरीथिंग इज ब्लेटेंटली ऑब्वियस कि क्या हो रहा है। मैं तो पॉलिटिकली बहुत ही लेट ब्लूमर हूँ, अभी मेरा ख्याल है 1-2 साल हुए होंगे मैं जरा फॉलो करना शुरू किया है, तो मुझे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा सही, है, अब सही। जाके कुछ जरा देखना शुरू हुआ हूँ, और तभी आइडिया हो रहा है कि 90s में भी यही चल रहा होगा, 2000 स्टार्ट में भी यही चल रहा था, बस कभी नोटिस नहीं किया। तो इसमें ऑल द इंस्टीट्यूशंस नीड टू स्टेप बैक एंड रीथिंक कि उन्होंने करना क्या है। इसमें मुझे मिफ्ता इस्माइल की बातें और जो ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, इट साउंड्स गुड, लेकिन अल्टीमेटली एंड में वो ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है कि सियासी बयानात हैं, तो उसमें देर कि कोई ये नहीं है कि आपने कोई बात कर दी देन यू हैव टू स्टे ऑन इट। वो चीज काफी डिसअपॉइंटिंग होती है, बट दैट्स समथिंग दैट वी गेट यूज्ड टू। So I hope I've answered some of the question that you had for me. Okay, one major development. Uh, Nawaz Sharif is losing against imprisoned PTI-backed Dr. Yasmin Rashid. Geo TV bureau chief Rais Ansari confirms. Okay, इस interesting. पे एक अपडेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गरीदा फारूकी की एक ट्वीट देखी थी जिसपे वो कह रही थी जीत रहा है। देखिए, यार पाकिस्तान में अगर आपने आपने अगर ट्रुथ देखनी है ना, तो आप उसकी ट्विटर फीड पे जाएं प्लीज। मुतमईन बेगैरत है वो, मुतमईन बेगैरत है वो। मतलब लिस्ट तो खैर लंबी है नहीं, अब मुतमईन बेगैरत देखें, की, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर वो गुफ टॉप बात 5 तो में सही से है। कह रहे हैं। डॉक्टर गुफ बात तो सही कह रहे हैं। होगा तो वही जो मंजूरे, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मुनीर होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि भाई, आई डू नॉट नो कि कितना ये लोग पुश करेंगे कि चीजें ब्लडी की तरफ ना जाए। देयर इज अ रीजन व्हाई द सिविलियंस आर कॉल्ड ब्लडी सिविलियंस, because once you push them far enough, we don't know how to fight. We're not disciplined. If we turn bloody, we don't know where to stop. Last time हम strawberries पे रुके थे. Who knows where do we stop next? ये चीज भी establishment को सोचनी चाहिए. ये जो आप सेट बात कर रहे हैं ना, दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि जो भी इनिशियल रिजल्ट्स चल रहे हैं ना, दिस इंक्रीजेस द अनसर्टेनिटी। यही जो भी अर्लियर बात हो रही थी, रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए सिर्फ इस वजह से। मैं ये नहीं कहता नहीं पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। मसला भी ये कि पाकिस्तान इज एट अ But स्पॉट not as a form जहाँ of पे revenge.
you cannot afford any more uncertainty. तो ये जो भी इनिशियल रिजल्ट्स चल रहे हैं, मुझे तो अनसर्टेनिटी नजर आ रही है कि समथिंग इज हैपनिंग व्हिच मे बी एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. So now they are going to respond in an unexpected manner as well, probably. So that is something which is concerning for me कि मुझे जरा अलार्मिंग लगता है कि ये हालात जरा अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं. तो लेट्स सी क्या बनता है आगे. And this uncertainty which you're referring to is related to economics, because I know if there is political instability or uncertainty in a country, or especially in Pakistan, जो कि like since I guess 2 years चली रही है, uh, उसमें like it affects economics, I guess. Is that what you're referring to? इट इज नॉट जस्ट द लास्ट 2 years. उससे पहले भी अगर आप पीटीआई के टाइम पे देखें कि वो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसे जोक बना लिया था, यूटन. बट देयर वाज एन इशू रिलेटेड टू ये जो सारा नॉन फाइलर स्टेटस था, कि कभी खबर आ रही है कि नॉन फाइलर स्टेटस खत्म हो रहा है, फिर आ रही है कि नॉन फाइलर स्टेटस खत्म नहीं हो रहा. द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट डज नॉट इंक्रीज इन पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आपको पता नहीं है कि होने क्या वाला है. तो बेसिकली जो मार्केट डायनेमिक्स हैं, दे रिलाई ऑन सिग्नल्स कि हमने किस तरफ इन्वेस्ट होना है. तो उस तरह आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, उतना मुश्किल हो जाएगा कि आपके रिसोर्स की एलोकेशन कैसे होगी. तो वो फिर मिस एलोकेट होगी, गलत जगह पे एलोकेट होगी. तो यू हैव टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी. अभी इन्हें लग ही रहा था कि परहैप्स के नवाज शरीफ आएगा तो हमारे चाइना के साथ भी हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी पैसा दे देंगे, जो अरबी ममालिक हैं वो भी पैसा दे देंगे, पैसा ही पैसा होगा. आई don't think any country is going to invest tons of money in a country where there is no certainty के direction क्या है इस country की. What we need is all the political parties to sit down. खत्म करो ये सारा जो रिवेंज पॉलिटिक्स चल रही है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, एंड कम अप विद अ प्लान कि करना क्या चाहिए. हाउ डू वी गेट द कंट्री आउट ऑफ दिस सिचुएशन दैट वी आर इन. क्योंकि ये पिछले 4 साल की गलती नहीं है, ये पिछले 30 साल की नहीं, पिछले 50 साल की गलतियां हैं जो आप अभी भुगत रहे हो. But given that, I understand. जिस तरह इन्होंने किया था, वो क्या कहते हैं उसे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, सीओडी. तो उस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ ये जा रहे हैं कि करना चाहिए. बट लाइक इफ वी कैन डिस्कस जो केसेस खान पे हुए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा वी कैन डिस्कस. बट लाइक इफ ही कम्स आउट एंड थिंग्स आर ऑल मेरी फॉर हिम, वो आता है पावर में, ही वुडंट इवन सिट ऑन अ टेबल विद देम. सो आई डोंट सी कि उसकी गवर्नमेंट अगर आती है किसी भी तरह से, वो कोई स्टेबिलिटी ला सकती है इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय द पैरामीटर्स जिन पे डॉक्टर बूफ जस्ट हाईलाइटेड कि यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, के इन्वेस्टर्स भी कहें कि यार हाँ ये है. क्योंकि आई रिमेंबर लाइक बिफोर नवाज जब उसे निकाला गया था, देयर वर रिपोर्ट्स ब्लूमबर्ग में और ये इकोनॉमिस्ट में कि रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान इज ग्रोइंग. Like there were certain colleagues of mine जो कि यूएस से आ रहे थे, and they were very much interested in investing in real estate in Pakistan. And other sectors और investors भी और sectors में पैसे पार्क कर रहे थे. But right now, like आपको पता ही है क्या situation है. तो like it would be a question to all the speakers के like do you think if Imran Khan comes to power, जो उसका आपने पास देखा है 3 साल, उससे पहले की उसकी पॉलिटिक्स 14 के बाद से, he would be able to bring in stability in Pakistan? फुरकान भाई, if मेरा तो he ख्याल है कि does, या प्लीज आप बोलें. जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो बात कर रहे हैं, इट इज वेरी रोजी. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन कि अभी इतना, लेट्स होप कि होता है, नहीं होता. लेट्स सपोज कि हो जाता है इस तरह की सिचुएशन के इमरान खान जो है वो बाहर आ जाता है, एंड द we actually have a PTI government which is with a strong basis, not like the previous time. तो वो सब कुछ होने के बाद अगर इमरान खान रिवेंज पॉलिटिक्स दोबारा स्टार्ट करता है, then the public will not be forgiving towards him either. As much as the public of Pakistan has started to revere him,
आई डोंट थिंक दैट वी हैव इट इन आवरसेल्व्स कि हम उसको भी बर्दाश्त करेंगे कि अ, अगर वो इस तरह की जो सी सियासत की तरफ जाएगा, बिकॉज वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ड्रिफ्ट। वो रिवेंज पॉलिटिक्स करेगा तो पब्लिक उसके अगेंस्ट हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। और डॉक्टर गूफ ने जो सी बात Uh, की थी, जी जी माहम, कहिए। नहीं, आप खत्म करो, सॉरी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर गूफ ने जो सी स्टेबिलिटी की बात की थी इन कंपैरिजन टू दी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे एक कैच 22 है। इस्टेब्लिशमेंट को कोalition गवर्नमेंट चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नमेंट डू देयर बिडिंग, ताकि वो उनको अपने हिसाब से रूल कर सके। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो खतरनाक होती है। ऑन दी अदर एंड, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस, they would expect a much better situation if there is a strong government. तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनेगी अगर हमारी कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट बन जाती है, दूसरी तरफ हमारी अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट बन जाती है तो इकोनॉमिक अगर नहीं बनती है तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है। तो हम दोनों साइडों से पाकिस्तान इस सिचुएशन में जो है वो फंस जाता है। वी डोंट नो व्हाट, द एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट दैट। Acha, first of all, establishment is not interested in making the government system of Pakistan really strong. I'm sorry, I have to say this. The reason that they keep toppling one government to the next one, I mean, कितनों ने पूरा टाइम गुजारा है, टेन्योर गुजारा है सिवाय जरदारी के, बट जरदारी इज जरदारी, no one can beat him. So they always do this so that the system stays weak. ठीक है? So, in order to for Pakistan to have a stability, you need at least 3 continuous terms where the next government do not change the policies of the last government. Otherwise, it's going to go like this. I don't know, maybe turn Pakistan into Sudan. Maham, just to add on what you इसमें मेरे just ख्याल said, में जो इमरान खान की very जो पॉलिटिक्स को अगर हम एनालाइज करें ना, तो सही है, उसकी कुछ पॉलिसीज बड़ी स्टूपिड थी, और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह का कोई बहुत ज्यादा एंटागोनिस्टिक उसका बिहेवियर था टुवर्ड्स हिज ऑपोजिशन व्हेन ही वाज इन पावर। फॉर एग्जांपल कोविड, जो 2 साल है उसके कोविड के अंदर रहे हैं, तो कोविड में जो पूरा एक सेंट्रलाइज उन्होंने मैकेनिज्म बनाया था और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उन्होंने, जो भी उन्होंने कोविड से रिलेटेड बॉडी बनाई थी, एनसीओसी खान उसका नाम था उसमें। और फिर इसके अलावा जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो उन प्रोटेस्ट को भी इतना बहुत ही हाई हेडेड वे में डील नहीं किया उसने, जितने भी मार्चेस वगैरह हुए उसके अंदर। एक जो बेवकूफ़ी उसने की वो ये कि जो कि थोड़ी-सी रियल पॉलिटिक्स में आपको करनी चाहिए, हमारे दोस्तों से अक्सर बात होती है। मतलब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का मैंडेट है भाई, आप मतलब आप सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में आती है और उनका एक जेन्युइन मैंडेट है। तो आपको मतलब ये इस तरह की ट्राइज़, इस तरह की अटेम्प्ट्स करनी चाहिए थी कि जिसके अंदर आप कम से कम पीपल्स पार्टी को अलग करके रखते बाकी अपोज़िशन के साथ, और उनसे आप डील करते और एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो है उनके साथ ज़्यादा क्रिएट करते। तो जो उन्होंने स्टुपिडिटी की वो ये है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने उस कैंप में फर्दर पुश कर दिया और बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं उन्होंने एक साथ खोल लिए। और फिर वो जो जुडिशरी का एक फ्रंट था काज़ी फायद ईसा का, व्हिच वाज़ हाइली अननेसेसरी, वो उस वक़्त बाजवा साहब की गोद में बड़ा मज़ा आ रहा था उनको, तो उस गोद में बैठ के वो झूला-झूल के सब कुछ करना चाह रहे थे। तो उसमें उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ फ्रंट खोला, बार्स को अपने खिलाफ किया, फिर इसके अलावा और 2-3 चीज़ें की। तो ये बेवकूफ़ियाँ दोबारा ना करें, और सिंध में अब दोबारा से पीपीपी का मैंडेट होगा, पीपीपी गवर्नमेंट बनाएगी और बड़ी स्मूथली बनाएगी। तो अगर ये पावर में आते हैं, अगर ये इलेक्शंस अभी रिग नहीं होते फर्दर, तो वो गलती इनको रिपीट नहीं करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स बिल्कुल एक जॉइंट किस्म का जो एक एग्रीमेंट है वो दे हैव टू रीच। इसके अंदर अभी माहम ने कहा ना कि आपको बहुत सस्टेनेबल पॉलिसीज चाहिए, कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो उन चीज़ों को कम से कम न छेड़े, जिसमें मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, एक तो एनर्जी का, जैसा कि गफरान ने भी ज़िक्र किया, मैंने भी किया, रियल एस्टेट का सेक्टर जो है बड़ा मैसिव इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के अंदर, कि
जिस किसी के पास भी सेविंग्स होती है, पैसा होता है, वो रियल एस्टेट की तरफ चला जाता है। और रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसा बबल क्रिएट हो गया है कि जो कि एक कॉमन आदमी के रीच के बियॉन्ड हो गया है, और वहां पर सारा ब्लैक मनी जो है आपका पार्क होता है। तो आपको, या ब्लैक मनी है, सेविंग्स है, वो सारी पार्क होती है वहां पर। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है कि लोग रियल एस्टेट के अलावा भी इन्वेस्ट करना चाहें। आपको स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको प्रॉपरली रिफॉर्म करने की जरूरत है। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि किस तरह से वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करें। कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को आप इंकरेज करें कि वो अपने आईपीओस करें, दे गो पब्लिक, और उसके अंदर इस तरह से लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो इस तरह की एजुकेशन की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर टैक्सेशन हो, और वो उनको प्रॉपर टैक्स रेट के अंदर लेकर आया जाए। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। उसमें भी हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो एक बेवकूफ़ी की, वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर उनको फर्दर, बजाय इसके कि वहाँ टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं, उनको टैक्स रिलैक्सेशन दे रहे हैं। दो दो एमनेस्टी स्कीम्स वहां पर लेकर आके, विच वॉज हाईली अननेसेसरी। तो ये जो इश्यूज है ना, कि आप जो गलत किस्म के सेक्टर्स को, निहायत ही अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को, और ये याद रहे कि रियल एस्टेट जो है ये बड़ा ही ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लोकली चीजें जो है सारी प्रोड्यूस हो रही हैं और लोग लोकल प्रोडक्टिविटी वगैरह वो एनहांस कर रहा है, बल्कि आपको मैसिव इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। वो सही है, जॉब्स वगैरह क्रिएट करता है वो, लेकिन वो सारा इम्पोर्ट ड्रिवन होता है, मेजोरिटी उसके अंदर इम्पोर्ट ड्रिवन होती है। तो ये एक शुगर की इंडस्ट्री है, जो कि बहुत गलत तौर पे सब्सिडाइज्ड है। शुगर की इंडस्ट्री को तो खैर पाकिस्तान में होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, और एक जहर है जिसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं लोगों के लिए। तो इन सब्सिडीज को आप हटा के, जिस तरह के सेहत कार्ड का मेरे ख्याल में उसका जो पॉलिसी थी, उसको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि सेहत कार्ड की जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में वो एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि सिटीजन और स्टेट का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वो रिवाइज कर रहा था। तो ये एक मैसिव मेरे ख्याल में एक उसकी पॉलिसी थी, जिसका कोई हमें इक्विवेलेंट जो है किसी और पार्टी की मैनिफेस्टो में नहीं मिलता। तो ये प्रायोरिटीज आपको ऑफ कोर्स करनी पड़ेंगी। और रिवेंज पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में, ये जो अगर विक्ट्री इनकी सस्टेन करते हैं ये लोग, अगर रिग नहीं होती है, तो दिस विक्ट्री शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू एरोगेंस, रादर इट शुड ट्रांसलेट इनटू ह्यूमिलिटी। तो अगर ये होगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। I would like to carry on your comment in regards to economics, सलमान भाई। Uh, एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का, मैन्युफैक्चरिंग, जिसके ऊपर कोई बंदा फोकस नहीं करता, कोई गवर्नमेंट फोकस नहीं करती। एंड टू द क्रेडिट ऑफ इमरान खान, he degraded it, massively degraded it. Me being a manufacturer myself had to face the blunt of it as well. मैन्युफैक्चरिंग और उसके रिलेटेड जो सी चीजें हैं, पाकिस्तान इज वेरी राइट फॉर इट। आपसे 10 साल का प्लान नहीं होता, आप 5 साल का प्लान करें। देर इज सफिशियंट लैंड फॉर मेकिंग आइटम्स सच एज लेटेक्स इन पाकिस्तान। आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टील का हमारे पास उतना नहीं है। देर इज रिलेटिवली सम ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टू गो टूवर्ड्स स्टील मेकिंग। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी फैब्रिक्स की, जिसके ऊपर ज्यादा काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर उसकी तरफ ट्रेनिंग, उसकी तरफ, आई डोंट पर्टिकुलरली बिलीव इन सब्सिडीज, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट के पास मैन्युफैक्चरिंग को की तरफ फोकस करने के मेरे ख्याल से उनके पास वो बंदे ही नहीं है। उनके पास वो आइडिया ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को आप बूस्ट किस तरह करते हैं। उस तरफ अगर आप जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर सकते। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी किस चीज के ऊपर बेस आप करना चाह रहे हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर। आई मीन, व्हाट आर यू बेसिंग द इकोनॉमी ऑन? वी आर नॉट अ सर्विस इकोनॉमी। We are either going into agriculture or we are going into manufacturing. That is the two things that we do, and they are not doing jack shit for the two things that we do. एग्रीकल्चर के लिए कितना ही उन्होंने कर लिया, चलो कुछ भी थोड़ा बहुत शायद उसकी तरफ किया हो। आई डोंट बिलोंग टू दैट सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने क्या किया है? हैव यू हेल्प्ड एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सॉर्ट? Have you tried to develop sports manufacturing? Have you tried to develop thread manufacturing? Have you tried to develop fabric manufacturing?
हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करके उनके ऊपर वर्किंग करके उनको बाहर भेज देते हैं. व्हाई कांट वी मेक आवर ओन रॉ मटेरियल? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट planned on developing raw materials within Pakistan. Me being from a specific industry, I know our land can sustain latex. We don't have latex. हम मलेशिया से import करते हैं. We can work towards threads. China से import करते हैं. Okay. We can work towards resins, which are used in countless amount of different manufacturings. वो हम चाइना और कोरिया से import करते हैं. Our Sorry. governments are not doing anything in regards to that. उसकी तरफ focus करेंगे, so I think we might be able to get a better economy for Pakistan. कोई Yeah, interesting. स्पेसिफाई करें वो कौन सी जी, जी, पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा हो? Uh, उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर दी थी इंपोर्ट के ऊपर, खास तौर पे उन चीजों के ऊपर जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होती थी, जिसकी वजह से हम लोग जो उनसे है इंटरनेशनल मार्केट की जो सी है कॉस्ट उसको बीट नहीं से कर पा रहे. We were standing, at least my particular field, we were standing against the manufacturing capacity of China based on our quality. We are still basing it on our quality. लेकिन the clients are going to consider quality only until it is affordable. जिस वक्त आप टैक्सेशन इतनी ज्यादा कर देते हो उन इंपोर्टेड मटेरियल्स के ऊपर जो कि आपने बाहर वापस भेज देने हैं, the things that you are going to manufacture and send out back again, something that you are competing on the international market with, then that's one lashback that you are going to get. There are other lashbacks in regards to imposing taxations and in such a way that they had made it very hard for the manufacturers to actually give out their taxations. टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देना मुश्किल कर दिया. फ्यू एग्जांपल्स. लेकिन ये चले पाकिस्तान की पुरानी सिचुएशन है कि जो बंदा टैक्स देना चाहता है वो उसके लिए टैक्स को अवेड करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फाइल हिज टैक्सेशन. दीज आर फ्यू थिंग्स जो कर सकते हैं, मैं वो बता सकता हूँ. सही इन माय फील्ड nobody's focused on that. सिर्फ क्विक क्वेश्चन, आपकी फील्ड क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग की आप कह रहे हैं, वो जरा फील्ड बता दें. स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ. He basically Sure. manufactures really nice footballs और ये internationally उसे एक्सपोर्ट भी करता है, ठेके लेता है. ये सेठ बंदा है, सेठ बंदा है. I would like I had a comment जो जिसका डॉक्टर सलमान ने हाईलाइट किया ना कि इकोनॉमिक्स वाइज या डिफरेंट पीपीपी के साथ जो रिलेशन डायनामिक्स रही पीटीआई की, आई वुड से पीटीआई की पॉलिटिकली भी उनकी स्पेशली आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इट्स अ टेल ऑफ ब्लंडर्स. आई वुड से उन्होंने जिस तरह अपनी नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशन दिया, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट अगर वो उस वक्त वो ना करते. जिस तरह इन्होंने केपी पंजाब से दिया, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट अगर ये उधर से ना करते, क्योंकि बहुत से डिसीजंस इनके स्पेशली जो आपकी इलेक्शन से रिलेटेड होने हैं और इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड होने हैं, उनमें इन्होंने अपना से खत्म कर दिया. आई थिंक it might have worked in a way के like लोगों के साथ कनेक्ट शायद उनका बेहतर हो गया हो, बट ऑन ग्राउंड आई थिंक अगर रिट्रोस्पेक्टिवली उसे विजिट करें, मेरा ख्याल है कि गलत डिसीजन थे पॉलिटिकली. दे वर नॉट वेरी मेच्योर डिसीजंस आई वुड से. ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने अक्सर सुना है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का. अक्सर जरदारी साहब जो है इसका बड़ा हवाला देते हैं और मेरे ख्याल में इट इज द राइट टाइम फॉर दैट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन प्रैक्टिस
कि वो करनी चाहिए, क्योंकि सही है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है पीटीआई के अगेंस्ट, बट किसी भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से जब आप बाहर आते हैं ना, तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस में या सोशियोलॉजी में हम कुछ जस्टिस की थियरीज पढ़ते हैं, यू शुड नॉट गो फॉर रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, यू शुड गो फॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस, कि जिसके अंदर आपका काम ये ना हो कि आप एन आई फॉर एन आई की तरफ जाएं, बल्कि आप किसी तरह सोसाइटी की हार्मनी को रिस्टोर करने की कोशिश करें। तो पीटीआई को इस तरफ मेरे ख्याल में जाना चाहिए, और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर ज्यादा सेंसिबल पॉलिसीज जो है वो परसू करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप अपनी विम्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट करें। तो अभी तो पहला तो इनका वो ये होगा कि किसी तरह खान को ये लोग बाहर लेकर आए जेल से, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो खान साहब कैसे करते हैं। आई थिंक, आई होप दैट the jail experience has humbled him, and he has learned some lessons from the mistake, और ये जाने के, क्योंकि कुछ भी है, किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं तो चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रेंथन, क्योंकि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ के अंदर है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े हमारे टीवी पंडित जो है वो पता नहीं इतने बेवकूफ होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अक्सर हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों को टीवी पे ये कमेंट्री करते सुना कि इलेक्शन वाले दिन कि पार्टी को देख के वोट ना दें, बंदे को देख के वोट दें। दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलशिट। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए आपको पार्टी आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, कि किसी एक मैनिफेस्टो के अराउंड लोग जो है मोबिलाइज हों, ऑर्गेनाइज हों, और वो पार्टी एक प्लेटफॉर्म बने कि जो स्टेट और सिटीजन के दरमियान वो ब्रिज का काम जो है वो करे। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है, और इसी वजह से जो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ना ये, इसके हवाले से कि आप डिफेक्शन के हवाले से, तो काफ़ी लीगल माइंड जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंटेरियन से ये राइट नहीं ले सकती कि वो अपनी कॉन्शियंस को एक्सरसाइज करके, तो वो भले से वोट दे दे और उसके बाद वो डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो मेरा ख्याल, मैं तो उसके फेवर में था कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि ये इस तरह के डिसीजन लेना जरूरी है, और इस तरह से आप पार्टीज को स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आप अलाउ कर देंगे कि कभी भी किसी को कोई भी वोट दे दे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो ये तो इलेक्शन होने के फौरन बाद भी ये हो सकता है कि एक मेजोरिटी पार्टी इलेक्शन जीत के आए और पीछे से एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मैनिपुलेट कर ले, और वो पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर उनको वोट ही ना दे, फिर दोबारा से इलेक्शन करवाएं आप डिफेक्शन के लिए। तो ये बिल्कुल स्टुपिडिटी होती है अगर वो अलाउ कर देते उसको। तो ये तमाम पार्टीज को ही सोचने की जरूरत है। बहुत ही एंटागोनिस्टिक इन्होंने बड़े बूढ़ी की गोद में बैठने के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा एनिमोसिटी जो है वो क्रिएट कर ली है, और सिर्फ पीटीआई को आप इसके अंदर ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब पीटीआई को हरा हटा के जब ये आए पावर में, तो इन्होंने तो हद ही कर दी ना। इस तरह की कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती जिस लेवल की अप्रेशन अगेंस्ट पीटीआई हुई है। पीटीआई के 3 सालों में ऐसी कोई आपको हाई हैंडेडनेस जो है इस लेवल की नहीं मिलती। हुई है कुछ मिस्टेक्स उन्होंने की हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है इन दो चीजों का। तो this is time to say enough is enough, and everybody should move on. इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्टर फुरकान, अगर मैं थोड़ा, जी जी प्लीज। 2018 तक तो वोट वोट को इज्जत दो, और नाम देवर नेमिंग पीपल कि इन्होंने हमें निकाला है, मुझे क्यों निकाला, और वो सारा। और बाद में अब जाके 2023 2022 में ये सारा कुछ इमरान खान ने किया, नॉट द एस्टैब्लिशमेंट। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि आप उस तरह भी ना कि सारे प्लेयर्स को ही चेंज कर देते हो कि प्ले गेम कोई और खेल रहा था, इवन दो वी ऑल नो कि गेम खेल कौन रहा था उस टाइम पे। तो इसमें ये है कि ये अक्सर जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि पीटीआई ने माहौल इस तरह किया, वो किया। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, नून लीग और पीपीपी, इसने ये कर दिया, उसका वो गला पकड़ के ले आएगा, उसकी आंतड़ियां निकाल लेगा, सड़क पे घसीटेगा। यही चीजें सुन रहे हैं, पीली टैक्सी और पता नहीं क्या क्या बातें। आई डोंट नो कि पीटीआई कब लेके आई है। आई वुड से कि वो तो बस इन्हीं के रंग में रंग गए थे, और दे जस्ट डिड अ बेटर जॉब एट इट, आई गेस, compared to the status quo, Yeah. PPP and PD. तो that's the only difference I would say. Otherwise ये सारा गंद पहले भी था।
इन्होंने कोई नई चीज नहीं की। हाँ, एक जो चीज चेंज हुई है कि जो चादर चार दीवारी, वो जो एक था कि औरतों के साथ जिस तरह का रवैया, वो एक ये नहीं कि अभी जाके खराब हुआ है, वो मरीम नवाज के साथ जो सिंध में हुआ था वो भी दैट वाज आल्सो नॉट नॉट अ गुड थिंग। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट हुआ है, Yeah. और उसमें आई डोंट थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी इज टू ब्लेम टू द एक्सटेंट के कंडेम नहीं करते ये लोग ये चीजें। कि अभी शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू हुआ है ये मंसूर अली खान के साथ, उस पे इद्दत वाले पे उसने पूछा है कि आप उसे कंडेम करते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन के बेटे ने तो कंडेम किया है, एंड ही बिलावल also condemned बिलावल ये बिलावल ने भी, हाँ, yeah इधर yeah इद्दत वाले पे। हम्म, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, वो तो कोर्ट का मामला है, लीगल जो भी है, कि बेसिकली ही डिड नॉट कंडेम इट और उसके लिए एक्सक्यूज बनाई। एंड द इंटरव्यूअर सेड क्लियरली कि यार कल को आपके घर पे भी बात आ सकती है। तो उसने फिर भी कि ही वाज लाइक नहीं, ये कोर्ट का है, लीगल वो सारा वो संभालें। तो ये तो आई but I थिंक think है कि नून लीग सीधा पर्सनल होती है, शुरू से होती रही है And but 90s। like I शहबाज think शरीफ का ये सबसे एक शेडी second, एक second. रिकॉर्ड है when it comes to Furkan violence. bhai, I want to add something here. Nobody Mr. can beat Goof, him. I also want to remind you one thing. Do you remember the time? I don't know if you remember it. But anyway, Nawaz Sharif ने बेनजीर भुट्टो और I think that was Nargis Bhutto, उनकी डॉक्टर फोटोज हेलीकॉप्टर से स्प्रेड करवाई थी. Yeah, and I was going like थोड़ा और पीछे. I know Dr. Salman and Dr. Goof know the person. When Benazir जब probably आई थी आफ्टर ज़ियाज डिमाइस आई गेस, या जब इसे उसके बाद निकाला था, अरेस्ट करना था इसे, मेरा ख्याल है फर्स्ट गवर्नमेंट जब इसकी निकाली थी एंड इसे अरेस्ट करना था, तो डॉक्टर जफर अल्ताफ, ही वॉज इन द डीएमजी ग्रुप बैक देन, तो वो साहिवाल में थे, उधर से इसे अरेस्ट किया था एंड जफर अल्ताफ वाज द पर्सन, वो उधर तब था पोस्टेड उसकी थी, एंड ही बेसिकली अरेस्टेड लाइक विद द पुलिस एंड ऑल from Sahiwal, I guess. And I remember someone telling me कि like जब ये एग्रीकल्चर का वो लगा हुआ था मिनिस्ट्री के अंडर, एक इदारा आता है उसका चेयरमैन, तो भुट्टो की गवर्नमेंट थी एंड शी वाज लाइक मैंने आपको कहीं देखा है, टू डॉक्टर जफर अल्ताफ एंड ही इज लाइक इन साहिवाल आई अरेस्टेड यू ना बैक देन। तो ये कहने का मकसद ये जो कराची वाला डॉक्टर गूफ आप कह रहे थे ना, कि मरियम को अरेस्ट किया है, ये 15-20 साल 30 साल पहले ये सब चीजें हो चुकी हैं, इससे ज्यादा हो चुकी हैं। वी हैव सीन, अब भूल जाते हैं शायद, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ था, उसे आने नहीं देते थे रेडियो पाकिस्तान पे फॉर इयर्स, और उसके बाद अयूब टाइम में उसके साथ क्या हुआ, इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। उनके बहुत से लोग अभी नून लीग में भी हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना के साथ जो किया किया, बेनजीर के साथ, द टू वुमेन इन पॉलिटिक्स उस टाइम पे जो अगर हम पीछे जाएं तो उनके साथ अच्छा खासा हार्श रवैया स्टेट का, और जो देन गवर्नमेंट आप कह लें उनका रहा हुआ है, डिक्टेटर्स का, तो वो तो रहा है। इट्स नॉट जस्ट पायनियर्स ने, पीएमएलएन नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये है। तो बाकी डॉक्टर सलमान, आर यू विद अस? आई हैड अ क्वेश्चन फॉर यू। I think उनका internet is not working. Dr. Goof, would you like to go ahead on comments with the cases जो कि खान पे अभी हुए हैं? You mentioned इद्दत वाला case, and there is a cipher case जिसका decision आ गया है, and then मेरा ख्याल है 9th मई का था, उसका भी आ गया डिसीजन। अभी इद्दत का हुआ है, साइफर का हुआ है, और तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना। इसमें व्हाट्स इंटरेस्टिंग आई वुड से इज के आई वाज लिसनिंग टू दिस वीलॉग, आई थिंक इमरान रियाज था और समवन, जिसमें व्हाट आई फाउंड कि मेरा भी उस पे यही पर्सपेक्टिव है कि दे काइंड ऑफ डिड जस्टिस टू इमरान खान इस हिसाब से
कि अपील में majority of those cases are not going to hold, not going towards the substance of the cases कि किसी केस में हो सकता है कि they might be actually strong cases, लेकिन इन्होंने लीगल लवाजमात भी पूरे नहीं किए हुए कि एंड में जो बयान लेना होता है वो नहीं लिए हुए कि उन्होंने लूप होल्स छोड़े हुए हैं। आई डोंट नो अब खुद छोड़े हैं इंटेंशनली इन्होंने छोड़े हैं या छुड़वाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इतना लीवे अपने लिए रखना होता है कि कल को अगर हमने सहूलत फराम करनी हो तो वो भी कर सकें। तो आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन क्योंकि द केसेस जिस तरह के उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, कोई एक केस नहीं है जिसपे जरा कम कह दी हो, मैक्सिमम जितनी दे सकते थे दी है, बट दे आर लीविंग लूप होल्स। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें अपील्स पे। लेकिन अभी एक केस रहता है 9th में वाला, which is I don't know किस बेसिस पे स्टैंड कर रहा है कि a person was in prison without supposedly any means of communicating with the people and he's supposed to move the masses to the 9th May incident. But let's see क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह के अभी चलते रहे ये cases without any kind of media exposure or very limited media exposure, so they are also going to be sham trials. या डॉक्टर सलमान आप इस पे जरा केसेस पे कमेंट कीजिएगा, बट उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन। आपने एक टर्म यूज की पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पार्टी आइडेंटिटी, क्या टर्म थी? पार्टी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, पार्टी आइडेंटिफिकेशन। और उसमें लाइक जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं हमारे लाइक टीवी वाले, यू कमेंटेड के वोट नॉट डोंट वोट फॉर द पार्टी बट वोट फॉर द पर्सन। तो उसपे लाइक इफ यू डिसएग्री टू दैट नोशन, तो खान तो शुरू से ये कहता रहा है कि यार ये पीपीपी वाले जाले हैं, दे आर zombies, वो फॉलो करते हैं भुट्टो को अभी तक, ठीक है। एंड देन पीएमएलएन वाले पटवारीज हैं, वो बरयानी फॉलो करते हैं, वट एवर द नैरेटिव उसने बिल्ड किया, वो तो उसके फिर ऑपोजिट है। आई नो ये क्रिटिक पीटीआई पे भी हुई थी कि इन्होंने इलेक्टेबल्स लाए हैं जो कि लाइक क्यू के टूटे हुए थे, पीपीपी के टूटे हुए थे या पीएमएलएन के थे, उन्हें इनगल्फ कर लिया। एंड दोज पीपल लाइक जैसी इस्टेब्लिशमेंट का घंटा बजा सारे भाग गए फौरन से। तो वो क्रिटिक उस पर हुई है और उससे मुझे समझ आ रही है कि लाइक पार्टी पॉलिटिक्स मैनिफेस्टो उसको देख के वोट करें, बट फिर क्रिटिक कहां जाती है जो पीटीआई 10-20 साल हमें सुनाती रही है? ये उसमें दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि पार्टी सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। पार्टी सिस्टम के स्ट्रेंथन होने में ये जरूरी है कि पार्टीज जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब पार्टीज जो है वो खुद से स्ट्रेंथन होने से इनकारी होती हैं जब वो बहुत ज्यादा पावर को सेंट्रलाइज करती है। और पावर सेंट्रलाइजेशन सिर्फ पीएमएलएन और पीपीपी नहीं है, वो पीटीआई के अंदर भी वो पावर सेंट्रलाइजेशन थी। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन से पहले के जो इलेक्शंस थे उसमें जो पीटीआई को वोट पड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कैरिज्मा की वजह से पड़े हैं। उसमें एज सच कोई पार्टी की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस अभी भी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन अभी भी अब भी लोग जो है थोड़ा बहुत पार्टी के मैनिफेस्टो या कुछ पर्टिकुलर उनके जो फीचर्स हैं उस पार्टी के मैनिफेस्टो के, उसके हवाले से वो एक एसोसिएशन फील करते हैं। तो ये हकीकत है कि भाई बाकी तमाम पार्टीज जो हैं वो बड़ी डायनेस्टिक हैं अपने नेचर के अंदर, और उसमें उस तरह की मेरिटोक्रेसी पार्टीज के अंदर मौजूद नहीं है। तो वो क्रिटिक जो है मेरे ख्याल में इतनी इनवैलिड भी नहीं है। लेकिन इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर भी उस तरह से पार्टी की तौर पे उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जैसे कराची जो है, कराची में 2013 ऑनवर्ड्स पीटीआई का एक बड़ा मैसिव वोट बैंक है जो कि एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे घटिया जो ऑर्गेनाइजेशन है पीटीआई की वो कराची के लेवल। हमेशा हम सुनते आए हैं कि कराची के अंदर मतलब गिनती के कितने एमएनए थे इनके, 10, 12, 15 थे। उस 10, 15 एमएनए के अंदर भी 3-3 ग्रुप बने हुए थे इनके। फिरदौस अली नकवी का अलग ग्रुप है, खुर्रम शेख जमान का अलग ग्रुप है, आलमगीर खान का अलग ग्रुप है, अली हैदर जैदी अपनी अलग फिल्म के हीरो हैं। तो ये जो एक लैक ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी के अंदर। और फिर पंजाब के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह का मामला हुआ। इवन केपी में 2013 में वो सेनेट के सारे उन्होंने वोट जो है भेज दिए थे, फिर उनको निकालना पड़ा था। फिर बाद में दोबारा
हम देखते हैं कि डिफेक्शंस हुई उसके अंदर। तो पार्टीज को अपने आप को मेरे ख्याल में इनोवेट करने की जरूरत भी है, री इन्वेंट करने की जरूरत है अपने आप को, और इस तरह के मैनिफेस्टोज लाने की जरूरत है कि जिसके अंदर वोटर्स जो हैं वो शख्सियात की बजाय, चाहे वो डायनेस्टीज हों, चाहे वो इंडिविजुअल कैरिज्मेटिक पर्सन हो, पार्टी उन इश्यूज की बुनियाद पर उनके लिंकेजेस हों। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि प्रोग्रामेटिक लिंकेजेस, जो कि वोटर्स और पार्टी के दरमियान होता है। वो प्रोग्रामेटिक लिंकेजेस हमें नजर नहीं आते, अभी भी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। तो ये पीटीआई के अंदर भी खामी है, बस ये है कि वो मतलब टॉप लेवल पे उस तरह की डायनेस्टिक पार्टी नहीं है, लेकिन मिडिल टीयर लेवल पे या थर्ड टीयर लेवल पे या सेकंड टीयर लेवल पे वो उनके अंदर भी डायनेस्टीज में काम करती हैं। मतलब शाम कुरैशी जेल में तो उनके बेटे और उनकी बेटी जो है वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, परवेज इलाही जेल में है तो उनकी बीवी जो है वो उनकी जगह करेंगे। सिर्फ मुराद सईद जो है उसने अपने किसी खानदान के बंदे को सवाल पर टिकट लेने नहीं दिया, बल्कि वर्कर्स को उसने टिकट दिलवाया है। लेकिन बाकी सब जगह जो भी जेर अताब है तो उन्होंने अपनी फैमिलीज के ही लोगों को आगे किया है। थोड़ा सा कल्चर का भी मसला है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इस तरह से, क्योंकि किनशिप का एलिमेंट है ना पंजाब के अंदर तो खास तौर पे, तो वो फैमिलीज को और इसको ज्यादा वो एक रेफरेंस का मामला है कि भाई ये इसको हम वोट देते हैं, तो उनके साथ उनका एक रेफरेंस का मामला होता है, पार्टीज के मैनिफेस्टो के साथ उसका रेफरेंस नहीं होता। तो ये मेरा उसके अंदर है कि ये करना, ये होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी यहाँ पर। Yeah, it's interesting. कि there जी is this मा book about there is this book about Pakistan, a strong country or something. I don't exactly remember the name. उसमें भी exactly कुछ इसी तरह की बात हार्ड पाकिस्तान, की थी कि हार्ड कंट्री पाकिस्तान है, का जो मेन मसला हार्ड है कंट्री। इट्स किनशिप। A hard country, yes. तो कहते हैं पाकिस्तान का जो मेन मसला है that is also kinship, water and kinship. Me सॉरी, being from Punjab region, I said me being from Punjab region find no problem in this kingship system at all. The thing is, अच्छा, No, as you don't understand. problematic You don't as understand. So in kinship the problem is कि जो deserving लोग होते हैं उनको वो सामने नहीं आ पाते, फिर सब कहते हैं कि ये मेरा भतीजा है इसको ले लो, ये मेरा भांजा है इसको ले लो, ये मेरा भाई है इसको ले लो, and that is how you मतलब वो जो जब मेरिट पे लोग नहीं आते इस तरह आते हैं तो फिर मुल्क क्या तरक्की करेगा? दैट्स द होल हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ uh, दिस। आई मीन अगर तुम गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखो तो किसी बड़े पॉलिटिशियन का कोई भतीजा बैठा होगा, किसी बड़े पॉलिटिशियन का, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इट मैं हैपेंड अ हाँ, लॉट मोर पॉलिटिकल व्हेन पार्टीज पीटीआई जो है वाज वो इन असल में, कंट्रोल ऑफ केपीके। पॉलिटिकल I पार्टीज शुड नॉट बी रन लाइक प्राइवेट बिजनेसेस। no, I completely understand या that concept, uh, especially in regards to what should I call them? Government offices that are based on merit. Politics is a little bit different. The reason why I would not be so harsh in regards to the concept of kinship in elections is because they make the people accessible. रिहाना जोनसी है वो उमर डार की जगह पे क्यों आई हैं? बिकॉज द डार फैमिली इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल। ये जो कॉन्सेप्ट है इट डज नॉट वर्क व्हेन इट कम्स टू अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज। पुलिस के अंदर अपने भतीजे को डाल देना, आई डू नॉट एग्री विद दैट नोशन। किसी को वो वाला ऑफिस दिलवा देना, किसी को ये वाला ऑफिस दिलवा देना बिकॉज यू आर रिलेटेड टू समबडी, दैट इज वेरी ब्लेटेंटली रॉन्ग। लेकिन पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी के अंदर a person who is accessible to the public would be a bet, in my opinion at least, would be a good enough choice. और जहां तक बात आती है कि एमएनएस की मेरिट क्या है, एमएनएस आर नॉट टेक्नोक्रेट्स, दे आर नॉट सपोज टू बी टेक्नोक्रेट्स, they are supposed to be the representation of the people. पंजाब के रीजन के अंदर रिप्रेजेंटेशन एक इंडिविजुअल से नहीं होती, उनकी पूरी की पूरी बरादरी से निकलती है। एंड बरादरी डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी
the same caste or the same lineage or the same surname. It is the people that are accessible to you. अगर मैं Sid, दारू though sorry, continue please. No, no, I was just going to finish it. I was just going to say कि अगर मैं डारों को वोट देता हूँ तो uh, I can access any member of their family. If I have a complaint, I can go directly to their house. Maybe it's because of the kinship. मैं बस ख्वाजा ये असद पॉइंट एक रेज करना था यहाँ पे कि जो आपने डार की बात की ना कि उनकी वाइफ ने फिर नहीं नहीं लड़ा नहीं था मदर 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 उनकी मदर तो आई थिंक देयर माइट बी सम कंफ्यूजन बिटवीन कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन हियर कि इट्स वेरी लाइकली कि उन्होंने probably उसे खड़ा इसलिए किया उनकी मदर को क्योंकि ये इसी चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इसमें आई ऑल्सो ऐड दिस इंटरव्यू ऑफ अताउल्ला तारर जिसपे उनसे यही बात हुई कि शरीफ फैमिली और शरीफ फैमिली वही है टॉप पे तो ये कैसे ना आसिफ ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ से नहीं आई थिंक इट वाज अताउल्ला तारर एंड हिज रिस्पांस वाज कि यार अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो ये भी तो हो जाता है ये कैसे हो जाता है वो क्यों नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में कि इंटरव्यूअर वाज कंफ्यूज्ड एज वेल कि यार डॉक्टर जो बन रहा है वो ट्रेनिंग के बाद बन रहा है आप अगर किसी के बच्चे को बस लीडर बना रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही और शी इज द चाइल्ड ऑफ द लीडर दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग कंपेयर टू कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए या लॉयर का बच्चा लॉयर बन जाए तो उस हिसाब से कि लाइक इन टर्म्स ऑफ अपीलिंग टू द पीपल वो तो आई एग्री कि दाड़ के केस में तो स्पेशली कि जो उनकी मदर के साथ हुआ भी था उसके बाद sympathies of the people were with her and सारा तो I think it was more than just के making available to the availability से ज़्यादा चीजें थी उसमें वो I would actually agree very strongly with you here, Dr. Goof. It has more to do with the capabilities. इस चीज को आप इस तरीके से भी देखें ना. If there is a family of politicians that know the ins and outs of the systems, that have the connections, हमारी बैड लक ये है, हमारी कौम की बैड लक ये है कि हमारे जो उनसे इस तरह के लोग हैं उनके अंदर भी जो है वो बुराई सिम गई है. But when it comes to capabilities, their children or their family members are trained from the beginning. रेहाना आंटी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके किस तरीके से हैंडल करना है. उन्होंने इम्तियाज अंकल और उनको सारी जिंदगी देखा है. उमर डार ने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स ही की है. उस्मान ने सारी जिंदगी वही देखा है. They know the ins and outs. They have the connections. They know how to handle it. It is very reasonable to assume that they know the ins and outs and know how to handle it because their father has been doing was doing politics throughout his life and was a very capable counselor, a very capable politician. Yes, ma'am. अच्छा सिड फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है. बस किसी को चोर बोल दो, किसी को करप्ट बोल दो, बात खत्म. एनीवे मेरा सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल इमरान खान इज नॉट देयर, ठीक है. व्हाट विल बी योर सेकंड चॉइस? हु आर यू गोइंग टू सपोर्ट एज अ सेकंड चॉइस? Consider my beard. It would be JUI. Yeah, I think that party has potential, but then I'm scared they might just make us all wear burqas. I think I would support Bilawal. Yeah, I would also. Bilawal Same for me, has Bilawal. potential. Yeah. लेकिन Bilawal मसला has बिलावल का ये है कि उसके साथ पैकेज डील में जरदारी भी आता है. मसला ये है. But like I think he's Technically, way एक second. Furkan bhai, एक second. I don't think Zardari. एक second. I don't think Zardari is that bad. अगर देखा जाए पीपीपी की अगर हिस्ट्री देखी जाए, उन लोगों ने सच कभी रिवेंज पॉलिटिक्स खेली नहीं है, ठीक है. जरदारी जब आया था, he actually
डिड स्टफ, ठीक है, मे बी, हाँ ठीक है, गबन किया, गबन कौन नहीं करता, आई मीन यूएस में भी पॉलिटिशियंस करते हैं, हर जगह पे होता है, इट्स नथिंग, वो आई थिंक सिर्फ जापान में नहीं होता, वो एक डिफरेंट लेवल है, होता तो हर जगह है, बट आई थिंक जरदारी स्टिल डिलीवर्ड, so I don't think he's that bad, honestly. आई I डोंट थिंक think आईड एग्री इस अगर हिसाब से कि आई थिंक नो वन डिलीवर्ड पाकिस्तान में। आप जीडीपी पर कैपिटा निकालो पाकिस्तान का 90 से लेके अभी तक का, उसकी परसेंटाइल निकालो दुनिया के हिसाब से, वी वर 17th परसेंटाइल इन द वर्ल्ड इन द 90s, अभी भी हम 17th परसेंटाइल पे हैं, तो nobody delivered. Just Dr. Goof, like I know percentile and all are very easy for you. आप जरा explain कर दो कि what does it actually mean 17th percentile? सो बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा इसके आप पूरे मुल्क की अगर जो इनकम है उसे पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दो, तो ऑन एवरेज इनकम क्या है लोगों की, एक बंदे की, तो उसको फिर आप सही। अगर रैंक करो पूरी दुनिया में, जैसा स्कूल में पोजीशंस नहीं आती, उस हिसाब से जी 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 100 में से करो, तो 17th परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपसे नीचे सिर्फ 16 बच्चे हैं 100 में से जिन्होंने आपसे कम मार्क्स दिए हैं। तो तो बॉटम 1/5 पे हैं हम। जी, बॉटम वन जी फिफ्थ पे हो, और 90s में भी यही था, अभी भी यही हाल है, 2000s में कोई इंप्रूवमेंट इस चीज में नहीं है। जीडीपी पर कैपिटा बड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया का भी बड़ा है, तो उसे अकाउंट फॉर करते हुए आप देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन रिलेटिवली स्टैग्नेंट सिंस द 90s। फॉर माई फॉर माई इंफॉर्मेशन डॉक्टर गूफ, जिस वक्त ये हम जीडीपी निकालते हैं, तो डू वी स्किम द एक्सट्रीम्स और डू वी नॉट स्किम द एक्सट्रीम्स? आपका मतलब क्या स्किम करने का एक्सट्रीम्स का? टॉप ओह 1% और टॉप बॉटम 1% को जो सा इग्नोर किया नहीं नहीं जाता है नहीं कि नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। जीडीपी जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड मेजर। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो आपका अच्छा मेजर नहीं है ये देखने के लिए कि इक्वालिटी कितनी है, तो एक्सट्रीम्स इसमें आएंगी। तो आपकी इकोनॉमी की जो टोटल प्रोडक्शन है बेसिकली जीडीपी मेजर्स दैट, तो इसमें टॉप 1% भी कह लें आ रहा है, बॉटम 1% भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। तो आपकी जो एवरेज एनुअल इनकम है कोई 1000-1200 डॉलर पर एनम है, कि आप अंदाजा लगा लें कितनी कम तनख्वाह है ऑन एवरेज बंदे की। तो एक्सट्रीम्स इसमें इंक्लूड होती हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ इक्विटी, कि अगर आपने देखना ना इक्वालिटी कितनी है मुल्क में, तो यूएस का जैसे जीडीपी बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा उनका आई थिंक $60,000 है जीडीपी पर कैपिटा। पाकिस्तान का है 1200-1400 इस तरह के आसपास है, बट इनइक्वालिटी वाइज पाकिस्तान एंड यूएस आर बेसिकली द सेम। उसमें एक मेजर आता है, मैं उसका अब नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन वो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो कितना लाइकली है कि आप भी अच्छी इनकम कमाओगे। तो यूएस का नंबर ये था 60%, और पाकिस्तान का नंबर भी ये 60% पे है। ये मैं ज़रा पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई 5-10 साल पुरानी बात होगी, 5 साल पुरानी, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें इतनी जल्दी कोई मेजर चेंजेस आती हैं। इंटरेस्टिंग। तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक्स पे थिंग्स हैव बीन स्टैग्नेंट ओवरऑल। और ये जब जरा वो भी करते हैं ना, लाइक इफ यू सी के पीएमएलएन वाले, लाइक दे बेसिकली डू सर्टेन एनालिसिस या कुछ, तो उसमें वो क्या नाम है, जब रीज बात करते थे कि इतना जीडीपी ग्रोथ थी, रीजन वाइज देखें साउथ एशिया में, तो आप उस वक्त जिस लेवल पे रैंक कर रहे थे पीएमएलएन के टाइम पे, उसी में लाइक आप करते रहे इन द लेटर टाइम्स पीटीआई के, तो रीजन में भी यू वर लाइक लैकिंग ओवरऑल हर टेन्योर में जो पिछले दो गुजरे हैं। तो आई थिंक वी हैव अनदर स्पीकर, मुनीब, आर यू देयर? आई थिंक या देखिए रीजन में तो सबसे हमारा स्ट्राइक कंपैरिजन तो आई थिंक होगा इंडिया के साथ, इस वजह से
कि our GDP per capitas were basically the same around 2005. उस टाइम के आसपास जीडीपी पर कैपिटा हमारा सेम था. अब हम 1500 1400 पे हैं और वो 2200 पे हैं. तो दे आर 30% अबव अस. तो उस हिसाब से देखें तो वी आर लैकिंग उस हिसाब से कि सिंस 2005 जरा स्लो डाउन हुआ तो है रीजनल के हिसाब से. बट द टाइम आई वाज टॉकिंग अबाउट जो पीएमएलएन का टाइम था, उस वक्त अगर आप उठा के देखें तो वी वर इवन बिहाइंड लेकिन अफगानिस्तान बिकॉज उन्हें डेटा बिकॉज देना नहीं बिकॉज आता. आप अभी एहसन इकबाल की ट्विटर पे जाओ, उसने लगाया हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नंबर. वो देखो तो आपको लगता है इनके टाइम पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन इंडेक्स है, इनके नंबर 0 थे और इस तरह ग्राफ दिया हुआ ना उसने. बट इफ यू एक्चुअली लुक एट द नंबर्स, दे आर एक्चुअली स्टिल क्वाइट हाई. ये नहीं कि पीटीआई के टाइम पे बड़ा नहीं है वो नंबर, बट उन्होंने स्केल इस तरह का बना के दिया वो फिगर कि इट अपीयर्स कि उनके टाइम पे कुछ बहुत ही ज्यादा कम थी. तो इस तरह डेटा प्रेजेंट करने के बड़े तरीके हैं डिफरेंट के, जिससे यू कैन मेक इट सीम कि आपके टाइम पे इम्प्रूवमेंट हुई भी है. अभी पीटीआई के जो है वो कहते हैं कि 20 ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 6% पे ग्रो कर रहा था जीडीपी. जीडीपी वाज नॉट एक्चुअली ग्रोइंग एट 6% के. आई मीन ग्रो कर रहा था, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने दे मेड अप द नंबर, बट इट वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ दैट टाइम जो उन्होंने इंपोर्ट्स पे रिलैक्सेशन दी है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उन्होंने पुश किया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ के नंबर्स मैनिपुलेट हुए थे. जिस तरह डॉक्टर सलमान ने बात की थी ये एमनेस्टी की रियल एस्टेट में, द पॉलिटिकल पार्टीज दे गो फॉर क्विक सॉल्यूशंस कि उनके टाइम पे ही किसी तरह ना कुछ नजर आ जाए. दैट्स अ टेरिबल मूव. एमनेस्टी देना रियल एस्टेट में या किसी भी चीज में, इससे सफर कौन करेगा? जिसका ब्लैक मनी है उसने पार कर देना रियल एस्टेट में जाके. जो एक्चुअल जेन्युइन बायर है जिसने घर बनाना है, उसके लिए प्राइसेस ऊपर चली गई हैं. इन्फ्लेशन हुई है, उसकी ऑलरेडी जो एबिलिटी टू परचेज है वो गिर गई है. लॉस्ट टाइम में आम आदमी को हुआ है जिसने घर बनाना है. इनके लिए तो नंबर्स आ गए कि दे कैन शो कि हाँ इतनी ग्रोथ हुई, इतने मूवमेंट हुई, इतने पैसा बन रहा है इकोनॉमी में, बट people are not actually getting the benefit out of it. आई थिंक वी आर बीइंग अ बिट टू हार्श ऑन रियल एस्टेट. यार लोगों को फायदा भी You, होता है, अच्छा है. I just, या I just, you remember when I said कि how do we know कि वो independent leaders जो हैं वो सारे पीटीआई के साथ ही जुड़ जाएंगे? You remember that comment, right? So, now I'm reading this from Al Jazeera. Bilawal Bhutto Zardari says initial result very encouraging, and he says that leader Bilawal Bhutto Zardari has also commented that results are incredibly slow coming in, but noted early suggestions are very encouraging. In a post on X, he said PPP candidates and independent backed by the party seems to be doing very well. Sounds like they've already started the forcing one into one thing or the other into other thing, or we don't know कितने independent इनके already थे. ये सेम भुट्टो वाली हरकतें कर रहा है ये. 1970 में जो भुट्टो ने किया था ना, ये सेम वही हरकतें करने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें वो किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो मैंडेट है उसको स्टील करके खुद से पावर की पोजीशन में जाए. तो अभी कुछ दिन पहले हम कह रहे थे कि भुट्टो जो है वो सेकंड चॉइस है. मेरा तो नहीं ख्याल है. एज अ कराचाइट पीपल्स पार्टी को तो मैं पावर में कभी देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कराची में पीपल्स पार्टी की 15 साल की गवर्नमेंट में तमाम कराची ने जो सफ़र किया, उसमें हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतना डिटेरिएट हुआ है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मतलब आई मूव टू द एरिया ऑफ नाज़िमाबाद इन 2009. तो उस वक्त जो वाटर की सप्लाई है वो बड़ी स्मूथ थी वहाँ पर. ग्रेजुअली वो वाटर की सप्लाई जो है वो डिटेरिएट करना शुरू हुई है, और वो इतनी डिटेरिएट कर गई है कि हफ्ते में खाली 2 दिन 3 दिन पानी आता है. और जब पानी आता है तो पहले आधा घंटा आपको मोटर चलानी पड़ती है ताकि गटर का पानी उसमें से निकले, तब जाके आपको साफ पानी जो इसमें मिलता है. और ये तो खाली नाज़िमाबाद, ये वो नेबरहुड है जो कि प्लान नेबरहुड है. ये जब कराची कैपिटल था उस वक्त ये प्लान नेबरहुड बना था, इसकी ये हालत है. तो आप बाकी कराची को तो आप इमेजिन नहीं करना छोड़ दें क्या है सिचुएशन.
फिर अभी रिसेंटली मेरी वाइफ जो है वो इंटीरियर सिंध वगैरह में ट्रैवल करके आई हैं, तो बता रही है बहुत बुरा हाल है वहाँ पर, मतलब स्टैगरिंग कंडीशन है पॉवर्टी की वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जिस किस्म का इनका पॉलिटिकल कल्चर है ना, पार्ट जिस तरह से मतलब गवर्नेंस का इनका कल्चर है, इट इज नॉट समथिंग वी कैन एक्सेप्ट अनलेस देयर इज अ मैसिव चेंज। तो मुझे कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आता है। लोग डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन बिलावल एंड जरदारी, कि बिलावल इज डिफरेंट फ्रॉम जरदारी, बट आई डोंट सी एनी डिफरेंस एक्चुअली, क्योंकि वही एक लेवल, सल बल्कि बिलावल के अंदर मुझे जरदारी से ज्यादा एरोगेंस जो है वो नजर आती है उसके एटीट्यूड में, और जरदारी तो फिर भी। सलमान भाई, आप जो कह रहे हैं कि जो है ये भुट्टो की तरह हरकतें कर रहा है, तो इस बार फिर बांग्लादेश कौन बनेगा? मुझे लगता है कि यही हो जाएगा इस बार। वो इतना आसान नहीं है बांग्लादेश का एपिसोड रिपीट होना, क्योंकि जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी एक मैटर करती है। तो बांग्लादेश का भी जब एपिसोड हुआ था तो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उस तरह का इंडिया जो है वो कुछ कर नहीं पाया था, मतलब वेस्ट पाकिस्तान वाज वेल डिफेंडेड। तो उस तरह का मेरे ख्याल में नहीं होने वाला, लेकिन एक बहुत मैसिव अनरेस्ट होगा एटलीस्ट इन केपी, क्योंकि केपी में जो लेवल है ना एक पार्टी हम्म एफिलिएशन का, वो मेरे ख्याल में किसी और जगह पर नहीं है, इवन सिंध में भी नहीं है पीपल्स पार्टी के हवाले से। आई एम नॉट श्योर कि पंजाब किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन केपी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। और अभी तक केपी वाले जो है वो बस इलेक्शन का वेट कर रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अगर ये किसी तरह मैंडेट को सील किया गया तो इट इज एनीबॉडीज गैस कि वो किस तरह का रिएक्शन होगा वहां पर। तो आई एम होपिंग कि कुछ अकल वगैरह आए, सैनिटी जो है वो प्रिवेल करें। अच्छा, मैं Yeah. हाउ लॉन्ग विल यू गाइस कंटिन्यू विद दिस I think we are just moving towards the end. Last 15 minutes है. I would go to Muneeb. Muneeb, आपने अभी join किया है. If you can briefly introduce yourself और आप अपनी comments दे दें, क्योंकि like we usually end at 2 hour mark. So although we are planning another room, another session tomorrow. तो क्योंकि like right now I just shared the map जो जहाँ पे like हम टीवी वालों ने like they have done a good job GIS पे mapping की हुई है, but like the results अगर आप उस उनकी percentages देखें, it's still very premature I would say. But the yellow is basically the independence. ये जो grey sin में है, you know who which party this is. The green, dark green is PMLN. The black is diesel, and I think जो light green है, they are areas जहाँ पे like अभी या तो result आए नहीं है, election हुए नहीं है. तो इससे तो like अगर आप बलोचिस्तान का मेजर चंक निकाल दें, क्योंकि like you know there aren't many seats. In Punjab, if you see, it's expected कि it's turning dark green. KP is like all like yellow independent, but Punjab is turning dark green अगर आप देखें, क्योंकि मैं इसे 4-5 घंटे से फॉलो कर रहा हूं, तो ये डार्क ग्रीन हो रहा है, which is very interesting, and it would probably change more dark green जब हम उठेंगे सुबह, I think. तो yes, Muneeb, introduce yourself and ये जो सिंध के साइड पे, हम्म, फुरकान भाई एक जी जी सेकंड, ये जो सिंध के साइड पे वो है, क्या कहते हैं उसे, येलो, द डार्क ग्रीन साइड, दिस कराची? no, this is बलोचिस्तान. ये जो ये सिंध जो के डार्क साइड ग्रीन, पे है, ये राइट साइड बलोचिस्तान है. पे। जी जी, ये बलोचिस्तान है. ये बलोचिस्तान है. आई गेट इट। हम्म. और इन दिस लाइट, अच्छा ठीक है, एंड दिस लाइट ग्रीन इज PMLO साइड पे लिखा हुआ है, लाइट ग्रीन। नहीं नहीं, लाइट ग्रीन इज जहाँ पे बेसिकली अभी ना या तो रिजल्ट्स आए नहीं है या फिर इलेक्शन हुए नहीं है, जिस तरह ये जीबी का रीजन आप देख रहे हैं. जो डार्क ग्रीन है, जो पंजाब में ये थोड़ा सा इधर बलूचिस्तान, या ये मेरा ख्याल है इट्स केपी, और ये बलूचिस्तान में है, ये दिस इज PMLN. ये इनपी को किसी ने वोट नहीं दिए, हाय बेचारे। हाँ, चले मुनीब इंट्रोड्यूस करें और अपने कमेंट्स दें. जी जी थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैं बात ये करूंगा. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम.
जी आपको मुनीर। शाह जी ने मेरे बारे में बताया होगा। जैसे सुना होगा, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ। मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत इल्म है और आपकी सब बातें ठीक हैं। इलेक्शन हो गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, अब कौन जीतेगा? और मैं बुरे वाला से हूँ। मेरी आधी फैमिली लाहौर में है और आधी गांव में। मैं बहुत लोगों को सुन सुना हूँ। जी आई थिंक कनेक्शन का कोई इशू आ गया था। तो या एक सेकंड। जी आई क्या उनका जो सवाल है फुरकान भाई, उसका तो हमने जवाब क्लियरली भी देना चाहिए जितना उनका सवाल हमने रिसीव किया है। कौन जीतेगा? जिस तरह हमें इस वक्त नजर आ रहा है वो तो ISPR जीती हुई थोड़ी बहुत मुझे नजर आ रही है। जिस तरह एकदम जो सा येलो से पंजाब का रीजन ग्रीन होना शुरू हो गया। अ, और जहां तक बात है जो कि माहम ने क्वेश्चन रेज किया था कि ये इंडिपेंडेंस जोन से हैं, व्हाट इज द गारंटी कि ये इंडिपेंडेंस जोन से हैं वो PTI की तरफ जाएंगे? देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उनमें से जिस तरह इलेक्शन से पहले भी जो से PTI के जो से नॉमिनीज थे उनको प्रेशराइज किया गया, व्हाट्स स्टॉपिंग द सिस्टम टू प्रेशराइज देम आफ्टर द इलेक्शन? तो मैं जो इलेक्शन से पहले कह रहा था और माम भी इसी के ऊपर एग्री कर रही थी दैट व्हाई डू दे इवन डू दिस स्कैम, जिसका जवाब है जस्ट टू स्माइट देम आई गेस। क्योंकि जो इलेक्शन से पहले वो प्रेशराइज कर रहे हैं, नॉट कंसिडरिंग द मैंडेट ऑफ द पब्लिक एट ऑल, नथिंग इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग दैट आफ्टर द इलेक्शन। Hmm. I think let's go to the closing statements. I can go first. I would say कि let's see what happens in the morning. उठते हैं क्योंकि अभी तो like it the जो preliminary results आ रही हैं. Yes, most of the map was yellow. Independents का लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, but like रात को क्या होगा? No one knows. So let's see what happens in the morning and तब क्या results होते हैं और even like कल रात तक भी there would be certain things happening क्योंकि I remember 2014 and 18 uh, results drastically change हुए थे, especially in 14 as well. So let's see what happens and then let's hope things go well in terms of security. There were certain issues that were reported here and there and even before elections, I guess, in Balochistan during campaign. So I hope security issues now and we don't lose any more people. तो और सिक्योरिटी एजेंसीज भी लाइक वो भी एट स्टेक होती हैं इस वक्त. तो I'll move to डॉक्टर सलमान. फाइनल स्टेटमेंट्स अगर आप देते हैं. फाइनल स्टेटमेंट अभी तो खैर फाइनल रिजल्ट जब आएंगे तो फाइनल स्टेटमेंट देने के काबिल होंगे, लेकिन एक जो मुझे खुशी है जिस बात की, वो जो फीमेल इनकी कैंडिडेट से PTI के उन्होंने जिस तरह का मैसिव शो डाला है, तो दिस इज सच ए हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस टू विटनेस, स्पेशली डॉक्टर यास्मीन राशिद, रेहाना इम्तियाज डार और आलिया हमजा मलिक का आई एम नॉट श्योर वेदर व्हाट पोजीशन शी इज इन नाउ, और 2-3 और भी, कमल शोज़ब, शानदाना गुलजार, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दैट लेडी, व्हाट एन आर्टिकुलेट पॉलिटिशियन शी इज। और यास्मीन राशिद खास तौर पे, शी हैज बीन इन जेल फॉर पास्ट ऑलमोस्ट 9 months आई थिंक, और स्टिल शी इज हैविंग अ मैसिव लीड ओवर नवाज शरीफ। व्हाट अ स्लैप, व्हाट अ स्लैप। तो ये जो चीजें हमने विटनेस की है ना, तो आई थिंक
we are witnessing something historic as far as the electoral cycles are concerned in Pakistan. तो we are going to remember, अगर यही results इस तरह से रहते हैं जिस तरह से आ रहे हैं, तो we are going to remember this election for ages to come. And let's see, and hope for the best, and I hope sanity prevails across the board. जी डॉक्टर कूफ I would actually just reiterate जो Dr. Salman ने end में कहा, I hope sanity prevails. Uh, after this session, I'm probably just going to watch some more news, get a bit more updated, and just hope sanity prevails when I'm awake in the morning. ओके सिड माय फाइनल स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी कि जहाँ तक बात है सैनिटी की प्रिवेलेंस की, तो न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं हर तरफ से रिगिंग्स की। कराची के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट बॉक्स तोड़ने का सिलसिला भी जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। लोधरा के अंदर जो है जिस तरह कैंडिडेट्स 3 कैंडिडेट्स गालिबन चेंज किए गए थे क्योंकि बंदे उठाए जा रहे थे, जी जी तो बा इख्तियार और हस्बे आदत जो है वहाँ पे भी उसी तरीके से कैरी आउट किया जा रहा है। सियालकोट बीइंग अ बिजनेस सेंट्रिक कम्युनिटी, हमारे यहाँ पे इतने फोर्सफुली इन चीज़ों को नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ वकील नहीं करते, जज किए जाते हैं। तो लेट्स सी के अब 1:30 तो रात के बज गए हैं, देखते हैं कि जज साहब ऑर्डर कब तक अपना देते हैं। I don't particularly believe in the system. I think कि sanity एक लिमिट तक जो सी है वो एक रिस्पॉन्स होता है। I do not know how we can change the very bad situation of our country that we are in. Uh, the institution that quote unquote rules us is very disciplined, very capable. They are just acting against the state itself. What can we do about that? I do not know the answer to that. Yes, Maham, final statements and like please go ahead and then close the session as well. Closing remarks आपके. अब फुकान भाई आप कर लें, फिर मैं if you're done now. नहीं नहीं I'm done with my final statement. I went अच्छा ठीक. the first So yeah. what I'm just going to say something very simple. You remember the time when of course you don't remember that, but we all know what Qaidi Azam said, कि no power in the world can undo Pakistan. Guys, it was not a challenge. He did not challenge you to do that. Please stop. That's all I'm going to say. It's for everyone. Imran Khan, Nawaz Sharif, Zardari. I mean, look at the country. We're worse than Afghanistan. We're literally losing it. Politics हर जगह पे होती है, ये कांग्रेस और बीजेपी भी एक दूसरे के साथ सब कुछ करती है, ठीक है, but look at the country, what they're doing, right? They're making the country better, but look at us. All we do is take money and then shift back to London or somewhere in Europe or I don't know, Kuwait. So मतलब खाओ, शौक से खाओ, लेकिन मतलब मुल्क का भी तो देखो ना। ये भी सोचो कि अगर तुम लोग इस मुल्क का ख्याल नहीं रखोगे और ये मुल्क टूट गया फॉर एग्जांपल, तो तुम लोग खाओगे कहाँ से? फिर तो तुम लोग सारे भिखारी बन जाओगे, जो हम ऑलरेडी हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है इंटरनेशनली, बट एटलीस्ट यू नो, जैसे इवन आर्मी के जो लोग हैं, मतलब if you think you can make people do your bidding by force, कहते स्प्रिंग को जितना तुम टाइट करते हो ना, जितना तुम दबाते हो, वो स्प्रिंग उतना ही बड़ा छलांग लगाती है. So at some point people are going to, like I said before, Pakistan is going to turn into Sudan anyway. So yeah, that's it. That's my last statement. Thank you for listening to us, and subscribe the channel. Click on the bell button so that you can get updates regularly. We discuss all kind of stuff: politics, religion, science fictions, everything. So thank you for listening to us,
and we're going to leave. Allah Hafiz. Have a good day or good evening.